बोले एक्लीसिया ऊंची आवाज में हालेलुया। तारीफ करें तालियों के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ। आज आपका आनंद दिखना चाहिए क्योंकि आज आप परमेश्वर की जीवित हुजूरी में बिलीव करें। आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, अपने हाथों को हिलाएं। ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस जो यहाँ पे मौजूद है सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इन डिलीवरेंस वीक में आप लगातार टेस्टिमनी सुन रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को डिलीवर कर रहा है, लोगों को ब्लेस कर रहा है। आज डिलीवरेंस वीक है तो आज आप बिलीव करें, आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है यीशु मसीह के नाम में। और बड़ी गवाहियों के साथ आज आप वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को हम जब सुनेंगे तो ध्यान से, विश्वास के साथ, ईमान के साथ कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को छुआ, इनकी जिंदगी में काम किया। तो पूरे ध्यान से, आत्मा में, विश्वास के साथ आपने इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनना है। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीषा है। कहाँ की आप रहने वाले हैं? मैं हरियाणा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से रहने वाली हूँ। नवंबर 2019 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद से आपके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होने लगे थे। हाँ जी ब्रदर। आप सबको खुल के बताएं कि जब ये अटैक होने लगे आपके शरीर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव था, इसका खुल के बताएं आप। हाँ जी ब्रदर, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡੋਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਸੀਗੀ ਲੀਲ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਈ ਪੜਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਬੋਡੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। मैं कई बारी रात ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕੇਲੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਮੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰ बढ़ਦੀ ਗਈ, ਸੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਟੈਕ बढ़ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। और मैरिज के बाद जब आप जुलाई 2020 में जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ही। उस समय प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा था? मेरा 1 मंथ सी ब्रदर। और उसके बाद आप फरवरी 2021 में सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुए। फर्स्ट टाइम तो मिसकैरेज हो गया आपका। हाँ जी ब्रदर। दूसरी बार जब प्रेग्नेंट हुए उसके बाद क्या हुआ फिर? ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸੇਮ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਿਖੀ, ਡੌਗ ਸਪਿਰਿਟ ਦਿਖਾ, ਡੌਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੇਮ ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। कितनी बार मिसकैरेज हो चुका था आपका? मेरे 2 बार हो चुके ब्रदर। और उसके बाद जब आप लोगों के बच्चों को देखते थे मन में क्या आता था आपके? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, डिप्रेशन 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। मन में क्या चलता था उस समय के क्या होगा आने वाले टाइम में आपके साथ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਦਾਂ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। मतलब ਐਦਾਂ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮਸੀਹ 'ਚੋਂ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੀਵਿਤ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। और आपने लगातार परमेश्वर के घर में जब आना शुरू किया, चर्च में आना शुरू किया, वचनों को सुना। हाँ जी। और जब 22 अगस्त 2021 को संडे मीटिंग के दौरान ये चर्च में मौजूद थे, उस दिन जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। जिनके बेबी ने अपने पेट पे हाथ रखो और मैं देख रहा हूं प्रेगनेंसी की टेस्टिमनी इसी हफ्ते से शुरू होने वाली है। यीशु के नाम में गर्भ फल पाए, बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आशीष पा जाओ और बढ़ जाओ यीशु मसीह के नाम में।
आप बताएंगे जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया अपने लिए, उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਲੀਵਰਸ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਏ, ਮੈਂਸਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲਿਆ ਤੇ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਮੰਥ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। आपने गवाही को ध्यान से सुना कि 2 बार प्रेगनेंसी पहले भी हो चुकी थी, लेकिन हर बार प्रेगनेंसी जब होती थी 1 महीना 1.5-2 महीने के अंदर अंदर ही एक सपना आता था, दुष्टात्मा अटैक करता था, बच्चा खराब हो जाता था या इनको ब्लीडिंग हो जाती थी और मिसकैरेज हो जाता। 2 बार इनके साथ ऐसा हुआ। आप बताएं जब इस बार आप जैसे प्रेयर को रिसीव किया सेम मंथ आप प्रेग्नेंट हुए और हाँ जी। इस बार प्रेगनेंसी के बाद आपको कोई सपना नहीं आया, कोई दुष्टात्मा का अटैक नहीं नहीं हुआ? ब्रदर कोई सपना नहीं आया, मेरी हेल्थी मतलब प्रेगनेंसी नु सेफ रखा परमेश्वर ने। और जब प्रेगनेंसी आपकी जो चल रही थी 9 मंथ तक, उस समय क्या विजन आया आपको, कैसे परमेश्वर ने ब्लेस किया फिर? मुझे परमेश्वर के दास ड्रीम में आए अपोस्टल जी और उन्होंने मुझे वचन दिया कि अगर तुम गवाही दोगे तो मैं प्रार्थना करता हूँ। तो परमेश्वर के दास ने मुझ में पेट के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की और उन्होंने बोला कि तुझे एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिलेगी और ये तुम्हारी फैमिली की ब्लेसिंग का कारण होगी। तो उसके बाद 9 मंथ कंप्लीट होते ही मुझे परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। कलीसिया अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार चर्च में आए होंगे। आप जानते हैं जब आप चर्च में आते हैं, जब आप वर्शिप करते हैं, उसके बाद जब टेस्टिमनीज को आप सुनते हैं, आपका काम है फेथ करना, विश्वास करना। क्योंकि लोग अक्सर जब भी गवाही देने आते हैं वो बताते हैं कि जब हम चर्च में आए हमने गवाहियों को सुना तब हमारा फेथ बढ़ा कि अगर ये लोग ब्लेस हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। सेम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, उस शर्मिंदगी को खत्म किया। 2 मिसकैरेजेस हुए थे लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने हेल्दी बेबी गर्ल के साथ। कितने साल की हो चुकी है आपकी बेटी? मेरी कितने महीने बेबी की? आज 1 साल 4 मंथ की हो चुकी है। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से हालेलुया। सब तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें उस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? संगीता, कहां से हैं आप? सुल्तानपुर यूपी। पिछले 18 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी। आप बताएं क्या होता था जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी? पहले हमको सांप नजर आता था, जैसे हमको मुर्दा लोग दिखाते हैं और हमको जैसे कोई दबाव डालता था हमारे ऊपर। तो हम जब यहाँ परमेश्वर में आई थी तो हमको यहाँ गवाही सुनी थी तो हम ठीक हुई थी, ब्रदर के पास आई थी। और जब आपको ऐसा लगता था जैसे सांप आपको काट रहे हैं, हाँ जी, कोई आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ जी, और जब आप सुबह उठते थे तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वीकनेस और कमजोरी महसूस करती थी, हाँ जी, कैसा महसूस करते थे आप उस समय? जैसे लगता हमारा शरीर भारी भारी है और जैसे लगता है कि बहुत मैं टूट गई हूँ अपने जीवन से, किसी ने मारा है हमको। और अटैक आपके ऊपर ये बढ़ रहे थे और धीरे धीरे आपकी लाइफ जो थी वो अपवित्रताई में चली गई थी। हाँ जी। कैसी जिंदगी थी आप खुद बताएं सिस्टर उस समय? उस समय तो हमारी हालात बहुत खराब थी, जैसे हम लड़ाई झगड़े में और पाप में व्यभिचार में चली गई थी। फिर बीचे बीचे हमारे पेट में दर्द होने लगा था तो बीमारी चालू हो गई थी। तो मैं आप उस समय बहुत ज्यादा दुखी रहते थे, बीमार रहते थे? बहुत दुखी रहती थी, हमारे पेट में दर्द होने लगा, जैसे लगा कोई हमारे पेट पे कुछ चढ़ जाए, दब जाए हमारे पेट पे। तो हम किसी के पास ना जाऊं, हम अकेले रहूं, हमारे बच्चे कौन संभालेंगे, कौन देखेंगे। आप बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए? मैं डॉक्टर के पास गई थी, नहीं अन्य जगह गई थी, नहीं मैं ठीक हुई थी। कहीं से भी कोई आराम नहीं मिला, ना तो डॉक्टरों से और ना अन्य जगहों पर भी? यस ब्रदर, कहीं और आपके मन में उस समय सुसाइडल थॉट, मरने के ख्याल आते थे? हाँ जी।
कि आप भी मैं इस लाइफ से अच्छा मर जाऊं। हाँ जी। फिर सिस्टर उस समय चर्च के बारे में कैसे जाना आपने? हमारे देवर यहाँ पे आ रहे थे, बोले थे कि आप भाभी वहाँ पे चलोगे तो आप छुटकारा पाओगे। तो मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं यहाँ ठीक होने लगी थी। आप लगातार फिर चर्च को अटेंड करते रहे, गवाहियां हाँ, सुनते रहे, हाँ जी, हाँ विश्वास बढ़ता गया। हाँ जी। 9 जुलाई 2023 को ये बहन जब चर्च में बैठे थे, मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की ही थी कि दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़े, आपकी बॉडी से निकल जाए। हर सिस्टम से दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करता हूं, शैतानी चीजें आपकी जिंदगी से निकल जाएं। इस बहन ने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और परमेश्वर की उस सामर्थ्य ने, जैसे आपने प्रार्थना को रिसीव किया, आपको टच किया था उस दिन। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? फिर हमको बहुत ठंडा महसूस मिला था और एकदम बॉडी हल्की हो गई, एकदम हल्की हो गई मेरी। और उस दिन से आपकी लाइफ जो है, जिंदगी जो है, पूरी तरह बदल चुकी है। बदल गई। कोई अटैक नहीं है, हाँ, कोई नहीं, कोई बीमारी नहीं है, कोई नहीं, कोई व्यभिचार का अटैक नहीं है। कोई नहीं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च हालेलुया, हालेलुया। इस गवाही के लिए, इस चंगाई, इस छुटकारे के लिए। सब जन चर्च अपने हाथों को उठाते हुए, अपने होठों को खोलते हुए परमेश्वर के बड़े अद्भुत, उसके बड़े चर्च कामों के लिए धन्यवाद, थैंक्स करते हुए, जैसे ये लोग विश्वास के साथ खुदा की जीवित हजूरी में आए और ग्रहण किया प्रार्थनाओं को, उन वर्ड को जो खुदा ने अपने दास के मुख से निकाले थे, और परमेश्वर ने इनकी जिंदगियों को बदला है। लाइफ बदल चुकी है। जैसे आप बैप्टाइज ले चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। एकदम से लाइफ जो है क्लीन हो चुकी है। हाँ जी। और अब जिंदगी कैसी है? परिवार में कैसे रहते हैं आप? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए। चर्च, अगर आप विश्वास करेंगे तो आज आपकी गवाही का दिन है। आप विश्वास के साथ रिसीव करेंगे, खुदा आपको छुएगा। आप कैसे आए, बीमारियों में, दुखों में आए, ये आपकी लाइफ बदल जाएगी। खुदा आपको चेंज करेगा, आप से वापस नहीं जाएंगे। थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए सब। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये अमृतसर ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस ब्रदर का नाम सुभेग सिंह है और इनकी गवाही है कि 8 साल पहले ये 12 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए थे और आज ये अमृतसर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी टेस्टिमनी को भेजा कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें टच किया, इन्हें हील किया। आइए पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। मेरा नाम हरप्रीत कौर है, मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ बोल रही हाँ। ये मेरे फादर साहब की गवाही है। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ब्रांच ਵਿੱਚ बोल रहे हैं। ये मेरे फादर साहब की गवाही है। मेरे फादर साहब 8 साल पहला 12 फुट की ऊंचाई तो डिग गए। डिगण के कारण मेरे फादर साहब का खब्बा चूला उतर गया, रीढ़ की हड्डी के मणके भी दबे गए सी ते असी हॉस्पिटल विच खड़िया वा ते डॉक्टरां ने ऑपरेट दस्सिया जिहदा खर्चा सी 1.5 लाख रुपए। अस पैसों के कारण अपने फादर साहब का ऑपरेट नहीं करा पाए। मेरे फादर साहब पूरी तरह बैड उत्ते चले गए। वॉशरूम, टॉयलेट डंडे के सहारे चलते सी। साडे घर विच कमाउण वाला कोई नहीं सी, दोने सिस्टर सी ते मेरे फादर साहब इस चीज़ को लेके बहुत उदास होंदे सी भी मैं अपनी बच्चियां के उपर बोझ बन गया सा। असी पहला तो ही अंकल रूला मिस्ट्री के नाल जुड़े हुए सी। 15 तरीक पहला महीना 2023 फादर साहब हड्डियां के रोगों को डांट रहे थे और मेरे पापा ने अपने वास्ते रिसीव किया और मेरे पापा की बॉडी में ठंडक महसूस हुई। मेरे पापा ने चल कर देखा, मेरे पापा पूरी तरह चल रहे थे। मैं परमेश्वर के दास और दास का धन्यवाद करती हूँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह की। सबसे पहले तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की कि किस तरह परमेश्वर अपने दास को यूज कर रहा है ब्रांचेस में लोगों को हील करने के लिए, उन्हें डिलीवर करने के लिए। तारीफ करेंगे जोर से। और आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ, इन्हें डिलीवर किया, इन्हें हील किया। व्हीलचेयर के रोगी को जिनको ऑयल से टच किया गया वो हील हो रहे हैं। शिकंजे के रोगी, व्हीलचेयर के रोगी हील हो रहे हैं।
और ये ब्रदर बताते हैं कि जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, उस समय ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे अमृतसर ब्रांच में, और जैसे ही परमेश्वर के दास की इस प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को टच किया, और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो इनकी बॉडी में बल आया। ये बिना किसी सहारे के चल पा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और आज 9 महीने 9 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मनीषा, कहाँ के आप रहने वाले हैं? अम्बरसर। क्या टेस्टमनी आपकी बताइए, आपके ऊपर जब आप 8 साल के थे तभी से जादू टोना आपके परिवार के ऊपर हुआ था? हाँ जी। आप खुल के बताएं क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? जादू टोना हो किसी ने करता कुछ, तो बस उसके बाद मेरी लाइफ ऐदा ही बस चलती रही खराब। बस कभी मैं कुछ होए ना मैनू तकलीफ, अपने आप नू कमरे च बंद कर लेना, तो मार कटाई करनी अपने आप नू, अपना गला दबाना, तो फिर सारे ने कभी किते लेके जाना कभी किते, तो मैं फ्री नहीं हो पाई। और फिर- जब आपको दुष्टात्मा का अटैक होता था तो एक एक 1.5 घंटा आपको खेल आती थी? हाँ जी बहुत ज़्यादा खेडी जाना समझ नहीं लगती मैनू हुंदा की है। और जब उसके बाद आपकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद आपको अस्थमा का रोग हो गया था। हाँ जी। कैसे पता चला आपको अस्थमा का रोग है? क्या मतलब आपके बस शरीर में मैनू क्या प्रॉब्लम रहती साह थी? चढ़ ला पिया, साह चढ़ना, मैनू माड़ा जिहा भी चलना तो मेरी हत्थ पैरों ਨੂੰ कुछ होन ਲੱਪਣਾ, कोई सुध बुध नहीं सी रहिंदी। फिर फटाफट मैनू हॉस्पिटल लैके जाना, किन्ने किन्ने दिन दाखल रहना मैं उत्थे हॉस्पिटल। फिर बस थोड़े दिन लगना, थोड़ा फर्क पैना, घर ले आना, बाद च फिर मेरी ओहे कंडीशन। डॉक्टर क्या बोलते थे कि ये ठीक होगा या नहीं होगा? नहीं क्या कहते बस सारी उम्र इस तरह रहना है, तो पंप वगैरह यूज करो। कौन सा पंप इस्तेमाल करते थे आप? आ वाला पंप इस्तेमाल करती थी मैं तीन और टाइम। एक दिन में कितनी बार इसको यूज करते थे? 3 टाइम। 3 टाइम। हाँ जी। कितने डॉक्टर्स चेंज करके देखे उस समय? 10 के कीते कोई। और सभी डॉक्टर ये बोलते थे कि सारी उम्र दवाइयां ही हाँ खानी जी, हाँ पड़ेगी। जी। ये बहन की कंडीशन जो थी इतनी ज्यादा उस समय क्रिटिकल हो चुकी थी कि दवाइयां खा खा के थक चुके थे, और जब ये दवाइयां से भी इनको कोई असर, कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो उसके बाद पंप दे दिया, मशीन्स दे दी, उसको यूज करना शुरू किया, दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको क्या लगता था कि क्या आप ठीक हो पाएंगे? क्या मन में आता था? नहीं मेरी माड़ी कंडीशन जी, मेरे बच्चे अन्ने रोंदे हुंदे सी, तो कदी किते लेके जाना कदी किते, मेरा तो कोई है भी नहीं सी परमेश्वर दे सिवा बस। और इसी रोग से दुखी होकर 3 बार आपने मरने तक की कोशिश करी। हाँ जी। कैसे कैसे मरने की कोशिश करी आपने? मैं कुछ दवाई खा ली चूहियां वाली, फिर मैंने हॉस्पिटल लै गए, उस तो बाद मैं मिट्टी का तेल पा के अपना सुसाइड करन जांदी। मैं कहा मैनू आ लाइफ नहीं चाहिए। 3 बार इस बहन ने इस रोग के कारण दुखी होकर मरने की कोशिश करी। और आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? कैसे परमेश्वर ने आपको चंगा किया? ब्रदर ने दसिया सी। और आपने लगातार चर्च में आना शुरू कर दिया। हाँ जी। फिर जब 21 मई 2023 को मीटिंग अटेंड कर रहे थे ये बहन, उस समय परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बीमार सब चंगे हो जाओ, व्हीलचेयर के रोगी चंगे हो जाओ, दमे के रोगी चंगे हो जाओ इन जीसस माइटी नेम। और आप बताएं, जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन मैंने में? इतनी उल्टियां आईयां, उस तो बाद मैंने इतना हल्का महसूस होया ना, तो फिर मैनू कुछ भी नहीं, ना पंप यूज करदी ना कुछ करदी, बिल्कुल फ्री हूं मैं। और उस दिन के बाद से आपने कोई मेडिसिन नहीं ली? नहीं ली, कोई इनहेलर पंप का इस्तेमाल नहीं किया? कुछ नहीं किया। अभी कितने महीने से आप फ्री हैं, आजाद हो चुके हैं बीमारी से? 8 महीने तो हो ही गया, 8-9 महीने कुछ नहीं करती, कोई मेडिसिन नहीं खाती, कोई पंप नहीं यूज करती, कुछ नहीं करती, मैं फ्री हूँ बस। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया। और आप बताएं कि जैसे आप बताते हैं कि दिन में 3-4 बार पंप का इस्तेमाल करते थे, हाँ जब से जी। प्रेयर हुई उसके बाद कितनी बार इस्तेमाल किया? नहीं फिर किया। कोई नहीं किया कभी एक भी? बार भी नहीं किया। कोई दवाई नहीं खाई? कुछ नहीं। रो क्यों रहे? क्यों आंखों में आंसू आए? वैसे मैं बहुत परेशान सी, मैं जो परमेश्वर चाहिए ना, मेरे बच्चे भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, सब कुछ सही है, ब्लेस हूँ मैं। भाग के चेक करें जरा, तारीफ करें, कलीसिया अपने हाथों को उठाएं, जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ, क्योंकि
आपने अभी चेक किया भाग के, आपको कोई सांस नहीं चढ़ी, कोई सांस फूली नहीं आपकी? ਪਹਿਲੇ मैं बिल्कुल नहीं सी चल पांदी। अगर चलते थे उस समय? ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और अभी ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, अब मैं ठीक हूँ। क्योंकि जब ये 21 मई 2023 को चर्च में आए थे, जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की थी, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रेयर को देखते हैं। का क्या नाम है? मनीषा आपकी क्या गवाही है? ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਪੰਪ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ और पूरी तरह से आप फ्री हो गए? तारीफ करें जोर से तालियों के साथ कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रेयर की कि आप हील हो रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, फटाफट ये बहन भाग के आगे आई, क्योंकि उसी टाइम परमेश्वर ने इस बहन को छू लिया, इनको हील कर दिया और आज ये बहन उस रोग से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, कलीसिया थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? गजल कहाँ से हैं आप? जलंधर से। 2.5 साल पहले आपकी ब्रेस्ट में लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा दर्द रहनी शुरू हुई थी। हाँ जी। आप खुद बताएं क्या गवाही है? मेरे ना ब्रेस्ट में मैंने डॉक्टर को चेक करवाया था जब मेरे को पेन होने लगी थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करवा लो। तो मैंने जब वो अल्ट्रासाउंड करवाई तो उसमें मेरे को सॉली आई थी, तो मैंने उनको दोबारा कंसल्ट करा तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप मेडिसिन ले लो। मैंने मेडिसिन खाई बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं खुद भी स्टाफ नर्स हूँ और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो कैंसर पेशेंट को ट्रीट करते हैं उस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। तो जब मैं उधर काम करती थी तो मेरे को खुद भी ये प्रॉब्लम थी, रसौली थी। तो जब मैं पेशेंट्स को देखती थी तो ज़्यादातर वुमेंस को ब्रेस्ट कैंसर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। वहाँ पे पेशेंट्स बहुत सारे ऐसे आते थे, जब मैं उनको देखती तो मेरे को खुद को भी डर लगता था कि लेकिन मेरे को भी ये प्रॉब्लम है और कहीं ये कैंसर में चेंज ना हो जाए। तो मैंने दोबारा दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करा क्योंकि मेरे को पेन रहती थी। वैसे मेरे को काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी, बट मैं जब उस साइड पे सोती थी तो भी पेन रहती थी। वैसे भी रेगुलरली भी मेरे को थोड़ी थोड़ी दर्द होती ही रहती थी। तो मैंने दोबारा जब कंसल्ट करा तो डॉक्टर ने मेरे को दोबारा से बोला कि अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करवा लो। तो देन पहले 9 mm की थी, वो इंक्रीज़ हो गई 11.7 mm की हो गई थी। तो जब मैंने उन्होंने मेरे को दोबारा मेडिसिन खाने के लिए बोला, उन्होंने बोला कि सर्जरी की अभी ज़रूरत नहीं है, आप मेडिसिन खाओ, इससे हील हो जाएगा। मैंने मेडिसिन खाई बट मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैंने फिर मेडिसिन बीच में छोड़ दी क्योंकि मेरे को फेथ ही ना मेडिसिन पे मेरे को यकीन नहीं रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये मेरे को खुदा पे विश्वास था कि यही मेरे को खुदा ही मेरे को हील करेगा, क्योंकि मैं गवाहियाँ सुनती थी। मेरा फेथ बन चुका था कि गॉड ही मेरे को हील करेंगे और कोई हील नहीं कर सकता। मैं बहुत सारी दवाइयाँ खा चुकी थी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और देन फिर मैंने जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करती थी उधर मैंने उन ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाया, बताया उनको कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये मेडिसिन ट्राई कर लो। मैंने वो मेडिसिन भी खा के देख ली, 1 मंथ मैंने मेडिसिन ट्राई करी बट मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उससे। पेन किलर्स खा के देख चुकी थी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। देन मैंने दोबारा जब मैं 2 अप्रैल पाम संडे था 2023, मैं आई चर्च में, मैंने प्रेयर को रिसीव किया। पापा जी ने वर्ड बोले कि आपकी रसौलियाँ जा रही हैं, परमेश्वर आपको हील कर रहा है। मैंने जब वो प्रेयर को रिसीव किया, मैं घर गई, मेरे को ड्रीम आया, पापा जी मेरे सपने में आए। उन्होंने कलीसिया में वो ले हैंड कर रहे थे तो उन्होंने मेरे पे भी ले हैंड किया। मैं रो रही थी तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि मेरे को ब्रेस्ट में रसौली है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि डोंट वरी, ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और जब मैंने उस वर्ड को अपनी लाइफ में रिसीव किया, परमेश्वर ने मेरे को हील किया और आज मैं खड़ी हूँ गवाही के साथ। चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। अपने स्कैन को रिपीट कराया 11 अप्रैल को, 2 अप्रैल को मैंने प्रेयर रिसीव करी। जब मेरे को ड्रीम आया और 11 अप्रैल 2023 को मैंने जब स्कैन को रिपीट कराया, मेरी स्कैन नॉर्मल आई। मैं हील हो चुकी हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मेरी शर्मिंदगी को भूल गया, मुझे डिलीवर
सब जोर से तालियों के साथ जुबान को, होठों को खोलते हुए सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए इस बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि आपका विश्वास बड़ा है तो आपकी गवाही भी बड़ी होगी। जैसा आपका विश्वास है प्रभु के सामने, वैसी आपकी गवाहियां भी हैं। इस बहन ने विश्वास किया क्योंकि ये खुद उस डिपार्टमेंट में काम करते जहां पर पेशेंट जो आते थे वो कैंसर पेशेंट थे, और ये पूरी तरह आपसे से पूरी तरह डरे रहते थे कि ये बीमारी बढ़ रही है, खत्म नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा डर लगता था, क्योंकि ना ऐसा होता था जिस साइड पे आपको ब्रेस्ट कैंसर है ना, वहां पे आप कैनुला नहीं, मतलब उनको वो नीडल नहीं लगा सकते जिससे मेडिसिन जाती, एक ही साइड उनकी होती है जिस पे वो आप नीडल लगा सकते हो, और इतनी ज्यादा वो पंचर हो जाती है ना कि जब कीमो जाती है तो पूरी वेन्स आपकी खराब हो जाती है और जगह ही नहीं होती कि आप उनको सुई लगा सके। आपको उनके पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता है और इतना पेनफुल होता है, आई कांट टेल यू हाउ मच इट इज पेनफुल। बहुत दर्द होती है उनको, और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का जिसने मुझे आजाद किया, जिसने मुझे हील किया, और इतनी हालेलुया बोलते हुए थैंक यू जीसस, जीवन खुदा का धन्यवाद करते हुए थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये बहन लगातार प्रभु में बने रहे और 2 अप्रैल 2023 को पाम संडे के दिन चर्च में थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। लाइन पे हर एक बीमारी को, रसौली को, कैंसर को, रोग को मैं श्रापित करता हूं, सूख जाए वो रोग राइट नाउ इन जीसस नेम। सिस्टर, प्रार्थना के बाद ड्रीम आया, ड्रीम के बाद जब प्रार्थना हुई या ड्रीम के बाद कितने दिन के बाद आपने रिपोर्ट कराई थी? मैंने 2 अप्रैल को रिसीव की, देन ड्रीम आया, और 11 अप्रैल 2023 को मैंने रिपोर्ट रिपीट कराई। एक वीक? हाँ, 1 वीक। 1 वीक के बाद आपने जब दोबारा रिपोर्ट कराई तो वो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, नॉर्मल आई। उससे पहले आपने 2 बार रिपोर्ट कराई थी? 2 बार रिपोर्ट कराई है, और मतलब साइज इंक्रीज हो रहा था उसका, बढ़ रही थी वो रसौली। डॉक्टर्स ने, मैंने जिन डॉक्टर को कंसल्ट कराया था, जब उन्होंने मेरे को एग्जामिन करा था तो मतलब 11.7 वाली के बाद जब मैंने डॉक्टर को कंसल्ट करा था, उन्होंने मेरे को एग्जामिन किया, उन्होंने मेरे को यही बोला था कि आपकी रसौली बड़ी है, साइज इंक्रीज हुआ है, क्योंकि मेरे की पेन बढ़ गई थी, पफीनेस बढ़ गई थी उस साइड पे, और हेवी थोड़ा फील होने लग गया था। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि साइज बड़ा है, इससे ये कम नहीं हुआ है, बट मैंने रिपोर्ट नहीं करवाई थी क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला आप दवाइयाँ खा लो, और बट उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको करवानी पड़ेगी दोबारा स्कैन क्योंकि आपका साइज बढ़ चुका है। तो बट मैंने नहीं करवाया, मैंने प्रेयर रिसीव करी, एंड गॉड ड्रास्टिकली वर्क इन माय लाइफ, एंड उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी इस गवाही। सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए, धन्यवाद देते हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चर्च, आप जीवित हजूरी में हैं, आप डॉक्टर जीसस की हजूरी में हैं, जहां पर अगर आप विश्वास है, आप रखते हैं, ईमान से हैं, तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर कुछ भी कहें, हालात कुछ भी कहें, रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, पर वो कहता है मैंने तेरे लिए जान दी है, मैंने अपना लहू देकर तुझे मोल खरीदा है। आपकी रिपोर्ट्स बदलने वाली है, आपकी जिंदगियां बदलने वाली है, आपकी लाइफ बदलने वाली है। सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए, चर्च धन्यवाद देते हुए सब। ये गवाही दिलीप ब्रांच से है और इस सिस्टर का नाम उर्मिला है। ये गवाही इस बहन की है कि पिछले 45 साल पहले इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। सपनों में इस बहन को अनगिनत सांप दिखाई देते थे, इनको जानवर दिखाई देते थे, इनको ऐसे लगता था कि सांप इनके गले में लटके हुए हैं, इनको खुली आंखों से सांप दिखाई देते थे। इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते जा रहे थे, इनको ऐसे लगता था कि जैसे इनको सांप खा जाएंगे। इन पर इतने ज़्यादा अटैक बढ़ते जा रहे थे कि ये अपनी फैमिली से लड़ाई झगड़ा करते थे, ये अपनी फैमिली से हमेशा रूठे रहते थे, अपनी फैमिली के साथ अलग रहते थे। और ये बहन आज दिल्ली ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही में ये क्या कह रहे हैं।
मेरा नाम उर्मिला है, मैं दिल्ली ब्रांच से बोल रही हूँ। और मेरे 45 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक पड़ते थे। मुझे बंदर और सांप दिखाई देते थे और मेरे घर में भी निकलते थे, मेरे गले में चिपट जाते थे और मैं सुसाइड करने के भी मन करता था। और मैं जा पहुँची थी कुएं में गिरने के लिए, मेरे को किसी ने रोक लिया और मेरे को बचा लिया वहाँ से। और फिर मैंने वीडियो देखी, मैंने वीडियो इसमें यूट्यूब पर देखा पापा का प्रचार, तो मैंने इससे पापा ने मेरे लिए प्रार्थना करी, मैंने इसको रिसीव किया। उस दिन से मैं छुटकारा मेरा, मैं कोई दुष्ट आत्मा अटैक नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं घर में, सब ठीक ठाक है। मेरा परिवार सारा, मैं भी खुश हूँ और मेरे बच्चे भी खुश हैं, कोई अटैक नहीं है किसी भी। मम्मा पापा का मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी ब्रांच का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे लिए प्रार्थना करी ना, मैं रिसीव किया, मैं चंगी। तारीफ करें सबजन तालियों के साथ सबजन इस बड़ी अद्भुत गवाही के लिए। और फिर 10 अक्टूबर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को वॉमिटिंग के जरिए बाहर आते हुए, मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को खेल के जरिए बाहर आते हुए। दुष्ट आत्मा पर फायर उतरे, आग उतरे राइट नाउ, फायर फायर होली घोस्ट। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा के ऊपर आग उतरते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इस सामर्थी प्रार्थना को इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया। और इस सामर्थी प्रार्थना को जब इन्होंने ग्रहण किया तो इनको उसी टाइम वॉमिटिंग आई। और अब ये सिस्टर पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा से आजाद हैं और अब ये 2 साल 11 महीने से पूरी तरह से आजाद है। तारीफ करें सब जन जोर से इस बड़ी अद्भुत गवाही के लिए। सब जन तालियों के साथ सब जन तारीफ करते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? सोनिया। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जलंधर कैंट संसारपुर से। 2005 में आपके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। हाँ जी। क्या हुआ था आपके परिवार पे, कैसे ये अटैक होने शुरू हुए थे? 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत हो गई। जब आपके घर के ऊपर ये अटैक हुआ था, किसी ने जादू टोना किया था, आपके घर में से मांस के टुकड़े, ब्लड, ऐसी चीजें निकलती थी। हाँ जी। क्या हुआ फिर उसके बाद? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੂਨ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ 8 ਵਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਆ, ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਲੱਡ, खून दे छिट्टे, पीस, फिर मेरे फादर जी है ना साडे उठण तो पहले ही वो चक के ना सेड़ दिंदे सी। जब ये अटैक आपकी मदर के ऊपर होने शुरू हुए 2005 में, उसके बाद वो बीमार रहना शुरू हुए, बेड पे चले गए थे। हाँ जी। और इसी वजह से 2005 में उनकी डेथ हो गई थी। हाँ जी। उसके बाद ये सेम अटैक 13 साल की उम्र में आपके ऊपर भी होने शुरू हो चुके थे। हाँ जी। मैनू ब्रदर जी है ना सिद्धियां, मैं जो काम तो आना ना, मैनू डायरैक्ट आवाज़ां आउंदियां हुंदियां सी भी अगला नंबर हुण तेरा ही आ। मैं ना अपनी फैमिली नू कहा, मैनू लगदा मेरा थोड़ा ही टाइम आ, मैं बचना नहीं आ। तो वो कहंदे की होया? मैं कहा नहीं, मैनू लगदा आ इदां। फिर मेरी मदर की फोटो सामने पई हुंदी सी, वो मैं चक के ना किते सिट्टिया ही। ਜਦੋਂ मैं ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੀ, पर मेरे है ना जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ असर ਹੁੰਦਾ ही रहा, दुष्ट आत्मा ਦੇ अटैक ਹੁੰਦੇ ही रहे। आपका जीवन जो था वो अपवित्रता में चला गया था। हाँ जी। मैं पाप 'ਚ भी गिर गई सी, जिद्दां फोन ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਗੁੱਸਾ ਆਣਾ, बहुत बुरे तरीके ना लोगों को मारना, एक गल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पानी सी। और क्या था ऐसा आपके जीवन में, आप लड़कों के साथ मिलके उस समय लोगों को मार पीट भी करते थे, ऐसा भी आपके जीवन में था? ब्रदर जी ग्रुप हुंदा सी ना, किसी ने प्यार मोहब्बत हुंदा सी तो कोई कुछ कह दिंदा सी, वो कहंदे जी दीदी इदां गल आ, इहदा फैंटा लाउणा। मैं कहंदी नहीं सी कोई टेंशन नहीं आ, मैं चल जाऊंगी, तुसी बस मैनू फोन ही करना आ, मैं आ जाऊंगी। और आप उस समय अपने पास कई तरह के हथियार तक भी रखते थे। हाँ जी। मैं तो हाकी भी हुंदी सी, मैं तो पंच भी हुंदा सी, बेसबॉल भी मैं तो हुंदा सी। इन्ने बुरे तरीके ना मैं लोगों को मारदी हुंदी सी ना, बहुत ज्यादा। कई तो माफी मांगते होंगे सी मेरे तो। मतलब कि आपका जो लाइफस्टाइल था, जैसे लड़कों का होता है, गैंगस्टर्स का होता है, आपका लाइफस्टाइल वैसा ही हो चुका था, पहरावा हाँ भी वैसा, रहना वैसा। लड़की वाला गुण में है ही नहीं सी, मुंडिया वाला ही सी। और कैसे फिर परमेश्वर ने आपको डिलीवरेंस दी, कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? मेरे बड़े फादर तो सब तो छोटी सिस्टर है ना, इतने आंदे हुंदे सी, तो उन्होंने जो मेरा मूड बहुत अच्छा होना, उन्होंने हसदे हसदे कहना भी सोनी जाया कर चर्च तुम्हें। मैं कहनी नहीं सी नहीं, मैं नहीं जाना उत्थे, तुसी जाओ। वो डरदे, वो भी मेरे तो डरदे हुंदे सी, वो मैनू कुछ नहीं कहंदे हुंदे सी।
फिर जब आप चर्च में आए तो क्या हुआ और कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨੱਚਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚਣ ਡਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਰੋਣ ਡਈ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨੱਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਡਾਉਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਾ 4-4 ਬੰਦੇ ਫੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖਿਓ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਵੇ। और जब आप चर्च में आए आपने वर्शिप करनी शुरू की परमेश्वर हाँ की जी। और परमेश्वर ने आपको डिलीवर किया उन चीजों हाँ से जी। और आप कलीसिया में बैठे थे, आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर भी हुई थी। हाँ जी। जैसे ही परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर हाथ रख के प्रेयर की उसके बाद फिर आपका जीवन जो था वो चेंज हो चुका था। हाँ जी बिल्कुल ही। मैं 7वीं लाइन 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਫਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਗਾਰਾ ਗਾਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ। और उसके बाद से आपका जो जीवन पाप वाला था वो पाप खत्म हो चुका है। हाँ जी। वो सारी बुराइयां खत्म हो चुकी है। हाँ जी। और जो परिवार में डेथ स्पिरिट का कर्स था या दुष्ट आत्मा जादू टोना था वो सब खत्म हो चुका खत्म है। हो चुका है ब्रदर जी। और अभी कितने समय से आप पूरी तरह से आजाद हैं? 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, चाहे आपकी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी क्यों ना हो, शायद आपको लगता है कि ये बंदा कभी सुधर नहीं सकता, आपको लगता है ये बीमारी कभी जा नहीं सकती, लेकिन जब आप परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आते हैं आपका इनकाउंटर परमेश्वर की हुजूरी के साथ होता है, परमेश्वर की सामर्थ के साथ, वो अभिषेक आपकी बॉडी को टच करता है तो बड़ी बड़ी जो दुष्ट आत्माएं जो ऐसी चीजें हैं वो आपको छोड़ के जाती हैं। जिस तरह परमेश्वर ने इस बहन को डिलीवरेंस दी, आप बिलीव करें आप डिलीवर होके वापस जाएंगे, चाहे वो बीमारियों से, चाहे वो कर्जों से, चाहे रोगों से, चाहे नशों से। आज आपका दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन बोले ऊंची आवाज में और तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा का थैंक्स करते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा करते हाथों को उठाएं। हालेलुया। सब जीवित खुदा के नाम को महिमा दे बड़ी डिलीवरेंस के लिए। आइए हम अगली गवाही बटाला चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम सुमन है और इनकी गवाही के 20 साल पहले इनको दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हुए और ये बहन को सपनों में सांप और मुर्दा लोग दिखाई देते थे और हर समय ये बहन डरे रहते थे, दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था और जब ये बहन रात को सोते थे तो इनको दबाव पड़ते थे और 20 मिनट तक इनकी आवाज़ बंद हो जाती थी और बॉडी में जकड़न रहती थी और बॉडी पेन रहता था, कुछ भी काम नहीं कर पाते थे, बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे थे और ये बहन अपनी फैमिली वालों से लड़ाई झगड़ा करते थे और इन्हें नेगेटिव थॉट्स आते थे और इनकी फैमिली ने इनकी मैरिज कर दी ये सोचकर कि शायद इनके ये अटैक्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैरिज के बाद वो अटैक्स और ज़्यादा बढ़ते गए और इनके हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी बनती नहीं थी। मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और वो अटैक्स और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे थे और ये बहन को सुसाइडल थॉट्स आते थे और इन्होंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को मारने की कोशिश की। एक बार इन्होंने मेडिसिन की ओवरडोज लेकर और दूसरी बार इन्होंने पंखे से लटक कर और तीसरी बार इन्होंने अपने हाथ की कलाई की नसों को काट कर अपने आप को मारने की कोशिश की और ये बहन कई अन्य स्थानों पर भी गए लेकिन वहां से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और ये बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे और फिर ये बहन को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन लगातार चर्च आना शुरू हुए और इन्होंने विश्वास के साथ ये चर्च के साथ जुड़े रहे, इन्होंने प्रार्थना को रिसीव करना शुरू किया और इन्होंने जो चर्च की ऑफिशियल वेबसाइट है www.ankurnarula.org पर जाकर इन्होंने फ्री लेहन के लिए अपने फॉर्म को फिल किया और फिर परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी।
और जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इस बहन को ऐसे लगा कि जैसे कोई चीज इनके अंदर से निकल कर गई है और इनको अपनी बॉडी एकदम से हल्की फील हुई। और उस दिन के बाद कोई दुष्ट आत्मा के अटैक्स नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए। और अब ये बहन 6 महीने 4 दिन से पूरी तरह से आजाद हैं। सब अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? काजल। कहाँ से हम? कादियां से। 23 नवंबर 2020 में आपकी मैरिज हुई थी हाँ जी। और मैरिज के बाद आप और आपके हस्बैंड बेबी चाहते थे। हाँ जी। क्या हुआ बहन, आप खुद बताएं अपनी गवाही। जब मेरी मैरिज हुई तो हमने बेबी प्लानिंग किया तो बेबी कंसीव नहीं हो रहा सीगा, बेबी कंसीव नहीं हो रहा सीगा ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੇਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ नहीं हो पड़िया। और लोग जब आपसे पूछते थे या रिश्तेदार पूछते थे, जो लोग सानू पुछदे सीगे ते सानू बड़ी शर्मिंदगी महसूस होंदी सीगी कि लोग कहंदे सी कि तुसी मेडिसिन खा लो, डॉक्टर को चेक कराओ। असी कहा कि नहीं, असी डॉक्टर नूं नहीं दिखाना, साडा फेथ परमेश्वर दे उत्ते सीगा। आप बैठे सोचते रहते थे, परेशान रहते थे जी, मगर डॉक्टरों के पास नहीं गए नहीं। क्योंकि विश्वास परमेश्वर के ऊपर था और आप लगातार जीवित हजूरी के साथ जुड़े हो, पहले से ही हाँ जी। खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए हाँ थे। जी, हाँ जी। और बहन कैसे फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, आप बताएं। मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसे काम किया कि जब हम बहुत परेशान रहते थे तो हमने चर्च आना शुरू किया। चर्च आए और वचनों को सुना, परमेश्वर के दास के वचनों को सुना, हमने विश्वास किया, हमने रिसीव किए वचन। और फिर आपने और आपके हस्बैंड ने व्हाइट कार्ड लेहन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन किया था। हाँ जी, हाँ जी। और इस बहन ने और भाई विश्वास के साथ चर्च में आते रहे और रजिस्ट्रेशन हुई इनकी। और 6 मार्च 2022 को इस इनके ऊपर परमेश्वर की दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सिस्टर आप बताएं कि जैसे ही लेहन प्रार्थना हुई, वो सामर्थी हाथ आपके सर के ऊपर आया, क्या हुआ उस समय? जब ले हैंड हुई तो मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। मुझे महसूस हुआ आज मैं जहाँ से बेबी लेके ही जाऊंगी। जब मैंने घर गई और 1 मंथ के बाद टेस्ट किया, मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। और 1 मंथ के बाद, लेहन के 1 मंथ के बाद ही आप प्रेग्नेंट थे? हाँ जी। और प्रेगनेंसी के टाइम में परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा। हाँ जी, हाँ जी। क्या ब्लेसिंग दी मुझे आप? कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी, मैं सब ठीक ठाक रही 9 महीने तक। परमेश्वर ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं शर्मिंदगी दूर की थी परमेश्वर ने। जैसे सब थैंक्स करें, तारीफ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। सब धन्यवाद देते हुए चर्च अपने हाथों को उठाते हुए, जितने ऑनलाइन है, ब्रांचेस में, जहां भी बैठे हैं आप, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए। वो आपके जीवन में सब कुछ आपकी सोच से परे करता है, हटके। ऐसा प्लान, ऐसी सोच भी नहीं होगी आपकी जैसा खुदा ने आपके लिए प्लान करके रखा है। जब आप उसके वचन में आते हैं, वो उसके घर में आते हैं, फॉलो करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वचन को फॉलो करते हैं, सामर्थ के भीतर जब उस स्पर्श के नीचे आप आते हैं तो खुदा आपको छूता है, आपकी शर्मिंदगियों को दूर करता है और आपको आशीषित करता है, ब्लेस करता है। सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए इस बड़ी गवाही के लिए, इस चंगिया, इस ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद दे। सब हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कपूरथला चर्च ब्रांच की गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम रीना है और इस बहन की गवाही की 5 महीने पहले इन्हें आंखों का रोग हो गया था। इनको दोनों आंखों से बहुत ही ज्यादा धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया था। इनकी आंखों के सामने एकदम से इनके अंधेरापन आ जाता था। इसी रोग के कारण इनके सर में भी, सिस्टर बता रहे हैं कि इनके सर में हमेशा बहुत ही ज़्यादा भारीपन रहने लगा था और ये हर समय इन्हें चक्कर आते थे। जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि जो इनकी दोनों आंखों की जो आई साइड है वो वीक हो चुकी है और डॉक्टर ने इन्हें लगातार मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने और डॉक्टर ने इन्हें आई ड्रॉप दिए। सिस्टर बता रहे कि इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, इतने ज़्यादा इन्हें आई ड्रॉप्स यूज़ किए, लेकिन उसके बाद भी इतने ट्रीटमेंट के बावजूद इन्हें कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। फिर डॉक्टर ने इन्हें चश्मा लगाने के लिए दिया
और सिस्टर बता रही कि जब ये डॉक्टर ने चश्मा लगाया तो इन्होंने चश्मा भी काफ़ी टाइम लगा के रखा। डॉक्टर बोला कि आपको चश्मा लाइफ टाइम आपको चश्मा लगा के रखना पड़ेगा। इस सिस्टर बता रही कि चश्मे के बिना इस सिस्टर घर का कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। चश्मे के बिना सिस्टर बता रही जब ये चश्मा लगा कर रखते थे इन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। ये चश्मे के बिना कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। इनकी आंखों की रोशनी बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही थी। और इस सिस्टर पहले से खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे। जब ये चर्च आते रहे, गवाहियों को सुनते रहे, जब इन्होंने वचनों को सुना, जब इन्होंने गवाहियों को सुना कि कैसे कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा, तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा कि परमेश्वर मुझे भी हील करेंगे, मेरी आंखों की बीमारी से मुझे हील करेंगे, मुझे डिलीवर करेंगे। फिर 4 जून 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। आंखों पे हाथ रखो जो आंखों के रोगी, सारी गंदी आत्मा, अंधराता, सब तरह के ब्लाइंड स्पिरिट्स आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आंखें चंगी हो जाएं यीशु के नाम, कान चंगे हो जाएं यीशु के नाम, सुनने लग कान, आंख देखने लगी इन जीसस। और जैसे इस सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने आंखों पर हाथ रख के रिसीव किया, तो सिस्टर बता रहा है कि उसी समय ने अपनी आंखों में गर्माहट महसूस हुई। और जैसे इन्होंने चश्मा उतार के देखा, सिस्टर प्रॉपरली देख पा रहे थे। परमेश्वर ने उस आंखों की बीमारी से सिस्टर को हील किया। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे, परमेश्वर की महिमा करे। अब ये बहन पूरी तरह 20 दिन से उसके लिए आंखों की बीमारी से पूरी तरह आजाद हो चुके। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बहन का नाम ललित है और ये नेपाल के रहने वाले हैं। 17 साल पहले किसी ने इनके ऊपर जादू टोना किया था। उसके बाद से ये एक दुष्टात्मा के प्रभाव के नीचे से दुष्टात्मा गलत संबंध बनाता था। इन्हें ऊंचाई से नीचे धक्का मारने के लिए ऐसी चीजें इनके मन में दिमाग में चलती रहती थी। आप बताएं और क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? बार होती थी, बुझाती कि कोई सपना में मेरा मार देलक, सांप दिखाई देती थी, बंदा लोग दिखाई देती थी, ऐसे बुझाती थी मेरा, मैं ऐसे बुझाती क्यों कोई मार दिया, कोई काट दिया, ऐसे मेरा गलत व्यवहार मैं देखती थी। मैं बहुत ही कहता है, मेरा बहुत तकलीफ ही बुझाती थी। उसके बाद आप बीमार रहना शुरू हो गए थे? बीमार रहना शुरू हो गई थी। मैं बुरा माल और व्यवहार से मेरा बीपी लो हो जाती थी। कितना खाती पीती मेरा बीपी लो के लो रहती थी। क्योंकि उस जादू टोने के बाद जब ये बीमार रहना शुरू हुए तो इनकी फैमिली सहारा देख के इनको टॉयलेट बाथरूम तक लेके जाते थे। डॉक्टर को चेक करवाया, 12-13 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए, 1 साल लगातार दवाइयां भी खा के देख ली, अन्य जगहों पर भी गए, परंतु कहीं से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और आपके मन में हमेशा मरने के ख्यालात चलते थे? मरने के ख्यालात थे कि मैं मर जाऊं, मेरा कुछ कहती कि मेरा जिए के आज नहीं है, कि मेरा कुछ बोले कि नहीं, कुछ मेरा समझ नहीं आती थी। गलत व्यवहार में मेरा समझ नहीं आती थी। आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? खामरा का चर्च के बारे में मेरा पड़ोसी बोला कि जाओ खामरा चर्च उधर है, बड़ी काम होते हैं, परमेश्वर बड़ी काम देते हैं, सारे के चंगी करते हैं। लड़ाई झगड़ा मेरा घर वाला से होती थी, बरमान लड़ाई झगड़ा करती थी मेरा घर वाला से मैं। और जब ये 12 मार्च 2023 को संडे मॉर्निंग मीटिंग के दौरान जब चर्च में आए, उस समय जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी कि जादू टोने का आत्मा आपको छोड़ के जा रहा है, गंदी वो डिले स्पिरिट, जो भी बीमारी का आत्मा आपको छोड़ के जा रहा है, तो इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। उसके बाद बताएं अभी आपका जीवन कैसा है? ऐसा अब उसके बाद मेरा पापा जी इधर आया ना, मैं तो मेरा पापा जी का लेन करा क्या कि डूट आत्मा चल जाओ, आउट हो जाओ, तो मैं रिसीव करा, मैं अपना जीवन के लिए मैं रिसीव करा, तो मेरा उसी टाइम से मेरा चंगी मैं हो गया खुदा के नाम से। मैं खुदा के नाम से उसी दिन चंगी हो गया, मेरा पसीना छूटा। बाद में मेरा इतना महसूस हुआ, ठंडा महसूस हुआ, मैं ठंडा महसूस है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती पिता, अब आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर खुदा। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जय बहन 6.5 महीने से पूरी तरह से डिलीवर है, आजाद है। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करे हर एक जन। आज जितने भी जन आज आप परमेश्वर के घर में बैठे हैं और ब्रांचेस में बैठे हैं या ऑनलाइन बैठे हैं, आज आपने तैयारी के साथ बैठना है। और जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के दासी आज आएंगे हमारे बीच में, तो आज बिलीव करें, जब आज प्रेयर होगी
तो उन दुष्ट आत्माओं का, उस जादू टोने का, उस बीमारी का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देते जाएं। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? महेंद्र पाल। कहाँ से आप? गुरदासपुर के। 20 साल पहले आप काम करते समय क्या काम करते हैं आप मिस्त्री का काम करते थे। काम करते समय आप 35 फुट की ऊंचाई से गिर गए थे। हाँ जी हाँ जी। क्या हुआ था भाई, आप खुद बताओ। मैं जो ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ 35 ਫੁੱਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਠ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗਾਡਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਫੁੱਟ ਠਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਥਰੂਮ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਉਹਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ MRI ਕਰਕੇ ਐਕਸਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। क्यों नहीं चल पाते? क्या बताया, क्या प्रॉब्लम आई? ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, रीढ़ की हड्डी के जो मणके आ सारे ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। और उन्होंने आपको बोल दिया था कि आप कभी भी पूरी लाइफ नहीं चल पाओगे। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੱਲੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੌਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ। उस समय आप टोटली बेड पर रहे? हाँ जी, 2 साल मैं बेड में रहा ही। कितने हॉस्पिटल बदले? मैं 3 हॉस्पिटल बदले। कितने डॉक्टर चेंज किए गए? 3 ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਫਾਂਡਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਾ। आप अन्य जगहों पर भी गए, डॉक्टरों के पास जब आप गए थे तो डॉक्टर क्या कहते थे? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫੇਰ ਦਰਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। और ये जो आपके हाथ में बेल्ट ये लगा दी थी डॉक्टरों ने आपको? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਾਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। और भाई उस समय फिर कैसे कौन देखभाल करता था, कैसी लाइफ थी आपकी जब आप ऐसी कंडीशन हो गई थी? मेरा घर वाले परिवार सी, मम्मी हुनी सी, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਚੁੱਕ। टॉयलेट वॉशरूम भी वही लेके परिवार आपको लेके जाता था? हाँ जी हाँ जी। और आप रोते रहते थे क्योंकि टोटली बेड पर चले गए थे? आप ही टोटली बेड में ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੈੱਡ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਰੈਸਟ ਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਣਾ ਲੰਮੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। और आपको मन में आता था कि अब मैं पूरी लाइफ कभी, क्योंकि जीने की आस आपने छोड़ दी थी, कि अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगा? ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਛੋੜਤਾ ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। बहुत सारा इलाज चला, मगर हर बार डॉक्टरों ने जब भी गए डॉक्टर पास यही बोला कि तू कभी भी खुद नहीं चल पाएगा। हाँ जी, बिना सहारे के तू कभी नहीं चल पाएगा और तू पूरी लाइफ ऐसे ही रहेगा। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੈਨੂੰ। और भाई फिर उस समय चर्च के बारे में कैसे जाना, कैसे आप खामरा चर्च आए? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਮਾ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਚਰਚ में, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ। और आप फिर लगातार चर्च आए? हाँ जी हाँ जी। और फैमिली के सहारे ही आप चर्च आए? हाँ जी हाँ जी। और 9 सितंबर 2023 को जब ये भाई चर्च में आए तो उस दिन हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। भाई जैसे परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर हाथ रखा, आपके ऊपर प्रार्थना हुई, क्या हुआ उसके बाद? ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਰਮਾਹਟ ਜੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਝੜਕਾ ਜਿਹਾ ਵੱਜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਉਸੇ समय जैसे घबराहट हुई? हाँ जी, उसी समय। और उसी समय आपने चेक करके देखा? हाँ जी, उस समय मैं चेक बैक ही भी देखा तो मैं ठीक ही रहा। किसी सहारे की जरूरत नहीं थी? नहीं, किसी कोई दर्द नहीं था? नहीं, कोई नहीं। बेल्ट उतार दिया आपने? हाँ जी हाँ जी। सब थैंक्स करे, तारीफ करे चर्च।
जैसे सामर्थ्य ने टच किया अपनी दासी के, खुदा ने अपने दासी के द्वारा इस भाई को टच किया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जैसे इनकी बॉडी में एंटर हुई, कहते बॉडी एकदम गर्म हुई मेरी, और मुझे ऐसे लगा जैसे अंदर से एकदम सारे रोग खत्म हो गए हो, कोई दर्द नहीं था। उसी समय आपने उठ बैठ के देखा, चल के देखा। हाँ जी, हाँ जी। जो आप कब पहले नहीं कर पाते थे, आपने करके देखा। हाँ जी, हाँ जी। और एकदम से आप हील हो चुके थे। हाँ जी, हाँ जी। और उसी समय ये भाई आ गया, इन्होंने उस दिन अपनी गवाही भी दी थी। ये भाई जो आपके सामने खड़े हैं, अभी अभी इस भाई के ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने ले हैंड प्रेयर की। 3 मंजिल से ये भाई नीचे गिरे थे और तभी से प्रॉपर चल नहीं पाते थे और छड़ी के सहारे चलते थे और बेल्ट भी लगी हुई थी। लेकिन आज जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये भाई बिना छड़ी के चल पा रहे। तारीफ करें परमेश्वर की इस हीलिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। भाई आप चलिए, जो नहीं कर पाते थे आप करके दिखाएं। चलें आप। सब थैंक्स करें। चर्च अपने हाथों को उठाते हुए, होंठों को खोलते हुए, खुदा के बड़े अद्भुत कामों के लिए उसके नाम को महिमा देते हुए। भाई उठ बैठ कर देखें आप, कितने दिन से आप बिल्कुल ठीक है अब? भाजी मैं आज तो 4 दिन बिल्कुल सही, कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द, किसी सहारे की जरूरत नहीं है, किसी दिन एकदम से परमेश्वर ने आपको ठीक कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर आपको कहते थे पूरी लाइफ आप बेड पर ही रहोगे, हाँ जी, हाँ कभी जी। ठीक नहीं हो पाओगे। हाँ जी। और आप उस प्रार्थना के बाद से बिल्कुल हील हो चुके हो। हाँ परमेश्वर ने एकदम से आपको पहले की तरह कर दिया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। चर्च अपने हाथों को उठाते हुए धन्यवाद दे दोस्तों को। इस भाई का नाम बलविंदर है, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं और पिछले 25 साल से ये भाई नशा करते थे। आप बताएं कौन कौन सा नशा करते थे आप? बीड़ी पीता ही ते शराब पीता ही। और ये नशा 25 साल पहले आपके जीवन में जब शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे नशा बढ़ने लगा। आपके परिवार वाले क्या बोलते थे आपको नशे में देके? माड़ा चंगा बोलते थे। और जब ये इनका नशा धीरे धीरे बढ़ने लगा, जो पैसा कमाते थे उसमें से ज्यादातर जो पैसा था वो नशों पे ही वेस्ट करते थे। और ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिसमें इन्होंने नशा ना किया हो, और नशे के बिना ये बिल्कुल भी रह नहीं पाते थे। काफी इनकी लाइफ जो थी वो प्रॉब्लम से भर चुकी थी और पूरी लाइफ जो थी डिस्टर्ब होने की वजह से इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी। और जब चर्च के बारे में पता लगा, लगातार चर्च में आना शुरू कर दिया। फिर जब इन्होंने चर्च की वेबसाइट के थ्रू अपना ले हैंड के लिए जब फॉर्म रजिस्टर किया, तो उसके बाद 3 अप्रैल 2022 को हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नोला जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। बेटा बाथरू रहते ने अंदर, बाप बेटा बाथरू रहते ने अंदर, बाप बेटा बाथरू रहते ने अंदर। ओ से और जैसे ही ले हैंड प्रेयर इस भाई के ऊपर हुई, परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया और एक दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी से निकल के गया। उस दिन के बाद से आज 1 साल 5 महीने के करीब हो चुके हैं। ये भाई नशों से पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए सब तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। आज भी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आपके जीवन में नशा है और या ब्रांचेस में बैठे हैं, लोग बहुत बार ऐसे आते कि हमने कोशिश की नशा छोड़ने की, लेकिन नशा नहीं छोड़ पाते। 2 दिन छोड़ा, 4 दिन छोड़ा, फिर से तलब लगी, फिर से नशा करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आप परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आते हैं, वो मसा, वो अभिषेक आपको टच करता है, तो वो दुष्ट आत्मा जो नशे का है, उसके पीछे जो स्पिरिट है, वो आपको छोड़ के जाता है और परमेश्वर आपको डिलीवर करता है। जिस तरह परमेश्वर ने इस भाई को डिलीवरेंस दी, अगर आपके जीवन में नशा है, आज बिलीव करें, आज आपकी गवाही का, आपके छुटकारे का दिन है। यीशु मसीह के नाम में तारीफ करें तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? जामशेदी पाशार जामशेदी। नाम क्या है आपका? जी मैनू नहीं आती एक सब्जी लाते अच्छा। ब्रदर आपका नाम क्या है आपका? कश्मीर जामशेदी। कहाँ से हैं आप? मैं जी परमा तो। ये भाई की गवाही है कि 1 साल पहले अचानक से ये राइट लेग में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगी और दर्द इतनी ज्यादा थी कि जो इनके सहन से बाहर थी। जब भाई उस समय दर्द इतनी हो रही थी, आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टरों ने क्या कहा था? जी 4 बार दवाई खाती, डॉक्टर
एक्सरे कर देने कभी दवाई दे देनी कभी खुद हार खा भी मेरे नाड़ा ब्लॉक हो गया है। हाँ जी डॉक्टर ने कहा था आपकी नसें जो हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं। हाँ जी और उसी के कारण आप से चल नहीं पा रहे हैं। वो जी फिर ऐसे हमारा काका होता ही मेरा बड़ा बेटा होता ही सेवा से होता ही। ये भाई इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, ये छड़ी के सहारे चलते थे, दवाइयां खाई, डॉक्टर को चेक करवाते रहे, मेडिसिन चला, ट्रीटमेंट करवाते रहे, मगर कहीं से कोई आराम नहीं था। उस बीमारी के कारण, उस रोग के कारण ये काम नहीं कर पाते थे, चल नहीं पाते थे, उठना बैठना बहुत ज्यादा कठिन था इनके लिए। लगातार दवाइयां खाई पर कहीं से भी कोई आराम नहीं था, दर्द बढ़ती जा रही थी, परेशानी इनकी बढ़ती जा रही थी। बहुत ज्यादा हमेशा ये बैठे सोचते रहते थे, परेशान रहते थे। इनका परिवार भी इनको देख के बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहता था। और फिर इनका जो बेटा है वो चर्च आता था, वो इनको चर्च में लेकर आए, उन्होंने चर्च के बारे में इन्हें बताया। लगातार चर्च आते रहे, गवाहियों को सुना इन्होंने, मीटिंग को जब अटेंड करा और इनका विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर अगर ये लोग हील हो सकते हैं तो आप मुझे भी चंगा कर सकते हैं। ये लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। 21 सितंबर 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। राइट नाउ डेविल, शैतान अपने हाथ को उठा और भाग जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं रिलीज करता हूं परमेश्वर के मसीह को आपकी लाइफ के ऊपर, होली गोस्ट फायर को आपकी लाइफ के ऊपर, और मैं कमांड करता हूं आपकी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से दुष्ट आत्माएं निकल जाएं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। भाई जैसे ही प्रार्थना हुई, प्रार्थना को आपने रिसीव किया, क्या हुआ था उस दिन फिर आपके साथ? उस तो बाद जी मेरे सारा काका इतने सेवा करता, उन्हें मैंने आख्या भी अज झोना उन्हें छड़ना, झोना अज झोना उन्हें होना है नाल मेरे। हाँ जी प्रार्थना होने के बाद आपने खुद को चेक किया, एकदम आप ठीक हो चुके थे, चल पा रहे थे, कोई दर्द नहीं था। हाँ जी सब आप चलिए पे, आप चलिए ब्रदर। चर्च थैंक्स करे, तारीफ करे इस गवाही के लिए। आप देख रहे हैं उस भाई को खुद चलते हुए, जो नसें ब्लॉक होने के कारण नहीं चल पाते थे, सहारा लेना पड़ता था फैमिली का या छड़ी का, किसी ना किसी चीज के सहारे ही चल पाते थे। बहुत दुखी थे, घर बैठे रहते थे, परेशान हो चुके थे। इनका बेटा चर्च में लेके आया और वैसे ही प्रार्थना को उन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया और आप उस भाई को देख रहे हैं बिना किसी सहारे के चलते हुए एकदम से ये भाई हील हो चुके हैं। सब थैंक्स करे, तारीफ करे इस गवाही के लिए, सब धन्यवाद देते हुए चर्च थैंक्स करे इस गवाही के लिए, तारीफ करे, सब धन्यवाद दें सब। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये यूपी ब्रांच की गवाही है, संजीव सिंह ब्रदर की गवाही है। इनकी गवाही है कि 8 साल पहले इन्होंने मेडिकल स्टोर का अपना बिजनेस खोला था। 3 साल तक तो इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद इनको बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो चुका था। इन्हें बिजनेस में से कोई भी कमाई नहीं आ रही थी। इनका बिजनेस जो था वो घटी में चल रहा था और इन्होंने 5 लाख रुपया उधार पकड़ लिया था, कर्जे में ले लिया था, और उसके बाद इन्होंने बैंक से लोन भी लिया था, जिसकी वजह से इनका जो कर्जा था वो बढ़कर 10 लाख तक हो चुका था। ये भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे, इन्हें पता नहीं चल रहा था कि मेरा कर्जा कैसे उतरेगा। लोग इनके घर में आके इनको बहुत ज़्यादा बोलते थे जिनके इन्होंने पैसे देने थे, और जिसकी वजह से ये भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। ये सोचते थे कि मैं इस कर्जे से कभी भी आज़ाद नहीं हो पाऊंगा। फिर किसी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च के साथ जुड़ना शुरू किया। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये घटी में भी अपने बीज को बोते थे। लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे, यूपी ब्रांच के साथ जुड़े रहे, और 19 फरवरी 2023 को जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, मैं आपको फाइनेंशियली ब्लेस्ड घोषित करता हूं। आपका फाइनेंस सेम लेवल पे नहीं होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको फाइनेंशियली ब्लेस्ड घोषित करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये भाई बताते कि जैसा परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना में कहा
उसी तरह मेरी लाइफ में हुआ। इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इनकी सेल इंक्रीज हुई और इनकी सेल इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आज इन्होंने अपने पूरे कर्जे को उतार दिया है। इनका बिजनेस बहुत ज्यादा ब्लेस्ड चल रहा है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपनाथ सिंह है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। अगस्त 2023 को आपका एक्सीडेंट हुआ था। जी भाई आप खुद बताएं कैसे एक्सीडेंट हुआ और क्या हुआ आपके साथ? मैं कहीं जा रहा था और एक मेरे साथ बहन जी थे और पीछे से मैं 2-3 गाड़ी आ रहे थे। हम इंतजार में थे, वेटिंग में थे, हाथ देते हुए। इसके पहले जब वो गाड़ी चला गई तो पीछे से एक पिकअप आती है और पिकअप वाला बहुत तेज गति से आ रही थी और हमको दाहिने साइड में धक्का मार के वो गाड़ी निकल गई, जबकि हम बाल बच्चे हैं, स्पॉट हो जाना चाहिए था जिस स्थिति में हम लोग थे। लेकिन हमको फिर दाहिना साइड में गाड़ी गिरा और गाड़ी के ही अपनी बाइक से मेरा जो पैर जो है जता गया और जताने के बाद हम बहुत दर्द होने लगा तो दूसरा आदमी आया, उठा के ले गया। एक निजी क्लिनिक था, निजी क्लिनिक में मुझे सुई दवाई हुआ। इसके बाद एम्बुलेंस से मुझे सदर अस्पताल लेके गया। वहाँ पर मेरा 10 दिन कच्चा प्लास्टर किया और 10 दिन के बाद हमने एक प्राइवेट डॉक्टर जो सर्जन है ऑर्थोपेडिक्स का, उसके साथ दिखाए तो उन्होंने MRI करवाए। MRI करवाने के बाद बोले कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। क्यों करना चाहते थे डॉक्टर ऑपरेशन? क्या हुआ था आपकी राइट लेग को? ये टूट गया था। आपकी जो टांग थी राइट लेग वो टूट गई थी? 2 जगह टूट गया था, एगो यहाँ टूटा हुआ था, एगो घुटना में टूटा हुआ था। और इसीलिए आपको डॉक्टर कह रहे थे इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी जी। कैसी कंडीशन थी उस समय आपकी? फिर उस समय चलना फिरना बहुत मुश्किल था। मैं फैमिली के सहारा चलता था, पत्नी या बेटे के सहारा चलते थे हम। और आप बेड पर चले गए थे पूरी तरह? जी जी जी। और उस समय आपकी फैमिली आपको देखभाल कर रही थी? जी जी। टॉयलेट वॉशरूम कैसे जाते थे आप? फैमिली द्वारा जाते थे। दवाइयां खाई आपने? जी। इलाज चला आपका? जी जी। कोई आराम नहीं था? नहीं, आराम नहीं था। आपने डॉक्टर बदले हैं? डॉक्टर फिर बदले, स्टेट लेवल पर झारखंड के राजधानी रांची है, रांची बहुत बड़ा हॉस्पिटल में गए, वहां उन्होंने दवाइयां लिखी। इसके बाद वो भी बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। डॉक्टर कह रहे थे बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है? नहीं, आपको ठीक होने के लिए ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। हाँ, 2 महीना बाद बोले कि 2 महीना बाद करना पड़ेगा। अभी दवाइयां खा लीजिए, एक्सरसाइज भी कुछ लिखे थे, ये घुटना के चलते, घुटना में जो मैंने फ्रैक्चर था और बहुत दर्द था, चल नहीं पाते थे जी आप। जी जी। और क्या क्या आता था उस समय फिर मन में ये आता था कि हम कैसे काम करेंगे, कैसे इतना, जब भी हम कभी बेड पर सोए नहीं हैं, अब इतना दिन हम कैसे सोएंगे, ये मन में रहता था। और प्रभु के हजूरी में रहते थे, क्योंकि हमारी परिवार 1.5-2 साल पहले प्रभु के हजूरी में थे। और मेरा साला भी जब यहाँ हजूरी में थे और मेरा साला जब आ रहे थे, शुक्र दिन था, तो एकाएक मेरा भी प्लान बना। पत्नी बोली कि जाइए प्रभु के पास में, और वहाँ मैं संडे के आया। संडे के बहुत बारिश हो रही थी तो वहाँ संडे के मेरा खाली देखे सुने। इसके बाद मंगलवार को हमने ली हैंड का फॉर्म भरे। ली हैंड का फॉर्म भरने के बाद मामा जी ने हमको ली हैंड किए। 21 सितंबर 2023 को इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। और भाई जैसे हमारे स्पिरिचुअल मदर ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, क्या हुआ उस समय? क्या महसूस किया आपने? हल्का महसूस लगा हमको और एकदम से बॉडी हल्की हो चुकी जी जी। पैर भी हल्का लगा हमको। आप कैसे चलते थे पहले? पहले हम चलते थे छड़ी का सहारा लेते थे, ऐसे करके चलते थे, छड़ी का सहारा करके, छड़ी के सहारे। और उस समय प्रार्थना के बाद आपने अपने आप को चेक करके देखा? जी। एकदम से आप हील हो चुके थे? जी जी। अब आप चल के दिखाइए, चलिए आप सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं उस भाई को, कहते छड़ी के सहारे मैं चर्च में आया था, परेशान रहता था, डॉक्टर कह रहे थे बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है। आप नहीं तो पूरी लाइफ ऐसे ही रहोगे, ऐसे ही चलोगे। पर आप उस भाई को देख रहे हैं बिना छड़ी के चलते हुए, दौड़ते हुए, एकदम से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया है।
परमेश्वर ने इनका ऑपरेशन किया। और खुदा जब प्रभु यीशु मसीह आपको टच करते हैं, जब आप उसकी हजूरी में आते हैं, सबसे बड़ा डॉक्टर जब आपका ट्रीटमेंट करता है, तो आपकी चंगाई, आपकी हीलिंग तय है। फिर आप देख रहे हैं उस भाई को, अपनी उस शर्मिंदगी को, छड़ी को अपने हाथों में लिए हुए। भाई कितने दिन से आप बिल्कुल ठीक हैं? अब 4 दिन से बिल्कुल ठीक हैं। उसी समय आपने अपने आप को चेक किया था, आप बिल्कुल हील हो चुके हैं। जी जी। और उसी समय आपने आज्ञा की अपनी गवाही भी दी थी। जी। 1.5 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में इस भाई की राइट लेग थी वो टूट गई थी और ये भाई छड़ी के सारे चलते थे। लेकिन जैसे आज परमेश्वर के दास ने, हमारे स्पिरिचुअल मदर ने प्रार्थना की, लेहन ने प्रार्थना की और उसी समय भाई बिना छड़ी के चल पा रहे। परमेश्वर ने प्रॉपरली हील कर दिया इस भाई को। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। तारीफ आपकी बड़ी होनी चाहिए। आप जहां भी बैठे हैं, चर्च में हैं, ब्रांचेस में हैं, देश विदेश जहां से भी आप इस हजूरी के साथ जुड़े हैं, ये मसा आपको बदलेगा, ये मसा आपकी जिंदगी को बदलेगा। अगर आप विश्वास के साथ बैठे तो नेक्स्ट आप होंगे, अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे, आनंद के साथ खड़े होंगे। आप थैंक्स करें, तारीफ करते हुए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये ब्रदर लवप्रीत सिंह की गवाही है जो बरनाला ब्रांच से हैं। पिछले 1 साल से ये भाई जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे। इन्होंने 5-6 जगह पे जॉब के लिए इंटरव्यू दिए। इनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी हर बार इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और ये भाई को आसपास के लोग हमेशा ताने मारते थे कि तुम्हारे पास जॉब क्यों नहीं है, इतने पढ़ने के बावजूद भी तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। और ये भाई बताते कि हर समय ये रोते रहते थे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और इनका भरोसा जो था वो परमेश्वर पे बना। ये लगातार टेस्टिमनीज को सुनते थे, वचन को सुनते थे, तो इनका जो विश्वास था वो लगातार परमेश्वर पे मजबूत होता गया। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को बताते थे कि जब आप परमेश्वर के राज्य में, उसके किंगडम में अपने बीज को बोते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में से रिजेक्शन को डांटता है, वो आपकी लाइफ में से फेलियर को निकालता है। तो ये भाई अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते रहे, लगातार ये विश्वास में बने रहे। और फिर इन्होंने हमारे स्पिरिचुअल मदर से ले हैंड प्रार्थना करवाई और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, लगातार ये प्रार्थना में बने रहे। और जब इन्होंने हमारे स्पिरिचुअल मदर की उस प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर ने इन्हें लगातार जुड़ने के साथ इन्हें कंपनी में एज अ ऑपरेटर की पोस्ट के साथ ब्लेस किया है, जिसमें इनकी सैलरी 25,000 है। अब इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? नेहा। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जलंधर के। पिछले 2 साल से आप फॉरेन जाना चाहते थे। जी। आप खुल के बताएं अपनी गवाही में, आप क्या सोचते थे, कैसे जब इंतजाम नहीं होता था क्या होता था, खुल के बताएं आप। मैं प्रभु में 2016 से थी, विश्वास बहुत था और हमारे स्पिरिचुअल मदर जो वर्ड्स बोलते हैं बीज बीजने के बारे में, हमेशा मैं उन वर्ड्स को फॉलो करती थी। मैं घटी में भी अपने बीजों को बीजती थी। मैं हर एक जन को बताना चाहती हूँ बीज की अहमियत बहुत ज़्यादा है हमारी लाइफ में। जब आप बीज बीजते हो तभी फल आता है। अगर हम बीज ही बीज खा जाएंगे तो फल कहाँ से आएगा? मुझे पता है कुछ भी होता था 10% के अलावा, जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर भी बोलते हैं कि अधिक बीजो, तो मैंने उन सब बीजों को बीजा है घटी में भी। ये सब उसी का ही रिजल्ट है। परमेश्वर ने मेरे खानदानी श्राप को तोड़ दिया। मेरे खानदान में से कोई भी इस मुल्क में नहीं गया हुआ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा। और मैं आपसे वायदा करती हूँ कि मैं और मेरा घराना अंतिम सांस तक केवल तुझे ही प्रणाम करते रहेंगे। हालेलुया। आप बताएं कौन सी कंट्री के वीजा के साथ ब्लेस किया परमेश्वर ने आपको? इंग्लैंड के वर्क परमिट के साथ, मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को स्कूलिंग वीजा के साथ। तारीफ करें एक बार जोर से, क्योंकि जब लगातार इन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए बीज को बोना शुरू किया, आप जानते हैं जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर या स्पिरिचुअल फादर बताते हैं कि आपने परमेश्वर के कामों के लिए बोना है, तो इन्होंने उस इंपॉर्टेंस को जाना और लगातार अपने बीज को बोना शुरू किया।
और जब 16 मार्च 2023 को ये चर्च में मौजूद थे तो हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी, और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई परमेश्वर की आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया। ये कितने साल का वीजा लगा आपका? जी 5 इयर्स वर्क परमिट। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सलाह देना चाहते हैं लोगों को? मैं यही कहती हूँ कि हमारे स्पिरिचुअल फादर के वर्ड्स, स्पिरिचुअल मदर के वर्ड्स प्लस बाइबल के वचन, आप उनको फॉलो करो। आप कभी घटी में नहीं रहोगे, कभी शर्मिंदा नहीं रहोगे। मुझे देखिए, मैं एक साधारण से गांव से हूँ, एक बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ, लेकिन परमेश्वर ने अगर मेरी डिजायर को फुलफिल किया, वो आपकी डिजायर्स को भी फुलफिल करने की ताकत रखता है। थैंक यू जीसस। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं जब आप बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए आपके रास्ते खुलते हैं। ऐसी थाउजेंड्स गवाहियां, हजारों गवाहियां आप सुन चुके हैं। जब लोगों ने बोना शुरू किया घटी में, तंगी में, चाहे कुछ था कुछ नहीं था, बोना शुरू किया परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके कामों के लिए, तो परमेश्वर ने ऐसा ब्लेस किया, ऐसे रास्ते खोले। ये बहन बता रहे कि पूरे परिवार में, पूरे घराने में आज तक कभी कोई इस कंट्री में नहीं गया। परमेश्वर ने 5 साल के इंग्लैंड के वीजा के साथ पूरे परिवार को ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस अद्भुत ब्लेसिंग के लिए। अपनी गवाही को रिसीव करते हुए परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है? मनजीत कौर मेरा नाम। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जगतपुर जट्टा की। ये बहन काफी सालों से अपना घर लेना चाहते थे। जब भी पैसे इकट्ठे करते थे तो फिजूल खर्ची में इनके पैसे जो थे वो वेस्ट हो जाते थे। लेकिन जब चर्च में आए, बीज बोने के बारे में पता लगा, लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने सीड को बोना शुरू किया, और टाइथ को वफादारी के साथ हर मंथ बोते गए। और जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर्स देगा, परमेश्वर आपको फेवर देगा, तो सचमुच परमेश्वर की आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया, और इनको सालों बाद 11 लाख रुपए की कीमत के अपने घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, उस सालों पुराने उस बंधन को परमेश्वर ने तोड़ा है और इन्हें ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप लगातार टेस्टिमनी सुनते आ रहे हैं कि जब लोग प्रेयर को रिसीव करते हैं और लोग अपने बीज को बोते हैं। आप जानते हैं अगर आप प्रेयर करते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, पवित्रता में आप अच्छी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, बपतिस्मा पाए हुए भी ऐसे लोग हैं जो सालों से कर्जे के नीचे, सालों से गरीबी के नीचे। आप जानते हैं कि बीज बोना आपके लिए फल को लेके आता है, आपके लिए फसल को पैदा करता है। अगर आप बोएंगे तो डेफिनेटली आप काटेंगे यीशु मसीह के नाम में, और आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले, और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए एक टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। एक टेस्टिमनी जो मुंबई चर्च ब्रांच से है, इनकी टेस्टिमनी जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। इनका नाम साक्षी है और इनकी टेस्टिमनी है, ये मुंबई ब्रांच में इस समय मौजूद है और वहां से ऑनलाइन जुड़े हैं। और आइए देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके फाइनेंस के रास्तों को खोला। देखिए इनकी टेस्टिमनी को इनकी खुद की जुबानी में। जय मसीह की। मेरा नाम साक्षी रस्तोगी है, मैं मुंबई ब्रांच से हूँ और मैंने MBA इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग किया हुआ है। मैं जिसके बाद मैं जॉब ढूंढ रही थी और हर जगह जहाँ जहाँ जॉब दिया, जिसके कारण मुझे बहुत रिजेक्टेड फील होता था, लोग वहाँ मना कर देते थे। और उसके बाद मैंने एक जॉब में ये भी बोला गया कि आप इस फील्ड के लिए नहीं बनाए गए हो, आप कहीं और जॉब ढूंढ लो। तो जिसके कारण मैं अपने आप को बहुत हर्ट करती थी, अपने आप को मारती थी और मुझे बहुत डिप्रेशन फील होता था। 2 जुलाई को जब मैं मुंबई ब्रांच में मौजूद थी, स्टॉफिल जी की तरफ वर्ड रिलीज गया कि आप फाइनेंशियल ब्लेसिंग पा रहे हो, और मैंने इस वर्ड को रिसीव किया अपने जीवन में। और उसके बाद जब 17 दिन बाद मुझे एक कंपनी से कॉल आया जहां मैंने कभी भी अप्लाई नहीं किया था, और वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी। और आज उस कंपनी में मेरी जॉब बिना इंटरव्यू के द्वारा मेरी जॉब लगी। और उसके बाद मैं वहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स डीलर हूँ। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सभी भाई बहन को तारीफ करें जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। कितने जन तैयार हैं वचनों को ग्रहण करने के लिए और बोने के लिए? अगर आप फेथ करते हैं, आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर किस तरह से आपकी जिंदगी में काम करता है, अगर आप समझ गए, आप जान गए कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या चाहता है और कैसे परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, तो आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। चाहे आपकी लाइफ कैसी क्यों ना हो, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो। ऐसी टेस्टिमनीज को, ऐसी गवाहियों को हमने सुना है कि जब लोग चर्च में आते थे, उनके लिए किराए के तक के पैसे उनके पास नहीं होते थे। अगर 50 रुपए किराया लगाना तो किराए तक के पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी अपनी घटी में
उन्होंने चर्च आना नहीं छोड़ा, परमेश्वर के घर में आना नहीं छोड़ा, और लगातार जब चर्च में आते गए, लगातार परमेश्वर के कामों के लिए बीजों को बोते गए, तो परमेश्वर ने सचमुच उनके फाइनेंशियल रास्तों को ओपन किया, उनको ब्लेस किया है। आप ध्यान से, जब भी बोला जाता है तो आपने ध्यान से सुनना है और अपने बीज को बोना है। और ये डिलीवरेंस वीक जो चल रहे हैं, इन वीक्स में एवरी थर्सडे, एवरी संडे जो प्रेयर्स होती हैं, जो वचन होता है, आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि ये वीक्स जो हैं, ये हफ्ते जो चल रहे हैं, इन वीक्स में जब ये कंप्लीट होंगे, आप हैरान होंगे देख के कि परमेश्वर ने कहां से उठा के आपको कहां खड़ा किया है, आपकी लाइफ को परमेश्वर ने परिवर्तित किया, आपके जीवन को परमेश्वर ने नया किया। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथ को उठाएं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोले, और तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। तेरा तख्त लगे रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे, सब हाथ उठे, सब होठ खुले, तेरी सना के लिए, सब हाथ उठे, सब होठ खुले, अपने हाथों को उठाते हुए सब कलीसिया सना तेरा तख्त लगे रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल यूं सजती। उसने वादा आइए हम गुरदासपुर ब्रांच से टेस्टमनी को सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम मंगा मसीह है। इनकी गवाही है कि पिछले 7 साल से ये पहले नशे की गोलियां खाने शुरू कर दी थी। धीरे धीरे इनका जो नशा था वो बढ़ना शुरू हुआ। फिर इन्होंने बीड़ी, सिगरेट और शराब का नशा करना शुरू किया। ये एक दिन में आधी बोतल शराब की, 1 पैकेट ये तंबाकू का खा जाते थे, जिसकी वजह से ये भाई जितना भी कमाते थे वो सारा ये नशों में उड़ा देते थे। और नशे के कारण ये भाई व्यभिचार में चले गए। इनकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से पाप में चली गई थी। ये भाई हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे और हमेशा इनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते थे। ये इस नशे और व्यभिचार से बाहर आना चाहते थे, पर ये बिल्कुल भी आ नहीं पा रहे थे अपनी ताकत के साथ। और इसी नशे के कारण, इसी व्यभिचार के कारण इनके घर में हमेशा कलेश रहता था और ये भाई पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। इन्हें ऐसा लगता था कि मैं कभी भी इस नशे से, इस व्यभिचार से बाहर नहीं आ पाऊंगा। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, गवाहियों को सुनते थे और लगातार ये परमेश्वर के फेथ में बने रहे। और फिर 15/1/2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि हर तरह का नशा, व्यभिचार, हर तरह की दुष्ट आत्माएं आपकी बॉडी को, आपके परिवारों को छोड़ के वो आउट हो जाए। और ये भाई बताते कि जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ और आज ये भाई हर तरह के नशे से, व्यभिचार से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। इस टेस्टमनी को आपने ध्यान से सुना है। बहन, क्या नाम है आपका? निशा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मॉडल टाउन। 2020 में मार्च महीने में आपकी मैरिज हुई थी। उसके हाँ जी। बाद से आपके पीरियड जो थे इरेगुलर हो गए थे। हाँ जी। आप खुल के बताएं क्या प्रॉब्लम आपको रहती थी उस समय? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਆ, जीवित परमेश्वर थे। और डॉक्टर बोलते थे कि जब तक ये पीरियड्स सामान्य नहीं होंगे तो आप प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाएंगे। हाँ जी। और जब लोग आपको बोलते थे, बेबी के बारे में पूछते थे, क्या कहते थे, क्या मन में आपके आता था उस समय? लोग उदों मैनू कहते सी भी जेड़े तेरे नाल दी विआहियां आ उन्हां दे बच्चे आ, तेनू कई थावां तो दवाई खिलाती पर तेनू कोई फर्क नहीं पैंदा। ते मैनू इन्ना बहुत शर्मिंदगी हुंदी सी ते मैं कई वेले रोण लग पैंदी सी। तो मैं इन्हां नूं भी कहा सी, मैं कहा जे मेरे बच्चा नहीं होया तो तुसी दूसरी मैरिज करवा लियो। और इनकी जो उस समय कंडीशन थी बहुत ज्यादा वर्स हो चुकी थी, बहुत ज्यादा ये परेशान थे। और आपके मन में क्या आता था कि बेबी होगा या नहीं होगा, क्या दिमाग में चलता था उस समय? मैं यही सोचती सी भी खरे मेरे बेबी नहीं होना। पर फिर 1.5 साल तो बाद पापा जी ने है ना 24 अक्तूबर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਘਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। और परमेश्वर ने आपको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी, पापा जी कहते होंगे सी कि तुसी अपने बच्चों का नाम रख लो और मैं उसका नाम सैमुअल रखा, एक हेल्दी बॉय बेबी ने। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जो काम परमेश्वर ने किया इनकी जिंदगी में। और उसके बाद आपको कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं खाती और 9 महीने मेरे बहुत बढ़िया। जो लोग पूछते थे पहले बेबी के बारे में, जब शर्मिंदगी महसूस, अभी क्या बोलते हैं, फिर क्या आप जवाब देते हो? अभी मेरे ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। तारीफ करें जोर से बेबी को देखें, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब अपने हाथों को उठाएं और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस बहन का नाम गीता है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। ये गवाही इनकी बेटी की है, 7 साल उम्र है इनकी बेटी की। और आप बताएं, बचपन से आपकी बेटी कभी चली नहीं थी? यस फादर, बचपन से चल नहीं पा रही थी ये हमारी लड़की। आप बताएं, जब आपकी बेटी बचपन से बाय बर्थ चली नहीं थी तो उस समय डॉक्टर के पास लेकर गए या डॉक्टर क्या बताते थे उसके बारे में बताएं आप। डॉक्टर ने बताया था कि बूट पहनाते तो इसको बूट लगाइए, बूट से चलने लगेगी। तो हमने बूट पहनाया था ना तो फादर वो इसका पैर ने एकदम पतला हो गया था मदर। और जब आपकी इनकी बेटी की जब हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसकी जो टांग थी वो सूखनी शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर ने जब बताया कि इनकी टांगें बहुत ज्यादा कमजोर हैं, साथ में ब्रेन की जो नाड़ियां हैं वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, इनकी बेटी को आर्टिफिशियल शूज लगा दिए गए थे और उसको लगाने से भी ये चल नहीं पाती थी। आपके आस पड़ोस वाले या लोग आपको क्या बोलते थे? बहन ताना मारते थे, कहते इसको मतलब बच्ची चल नहीं पाती, आप आई जाए, लड़की को यहाँ से ले जाओ, हमारा भी बच्चा हो जाएगा, हमारा भी बच्चा यहाँ से हो जाएगा। लोग आपको बोलते थे कि इसको हमसे दूर ले जाओ, हमसे दूर लेके जाओ। हमको ताना बहुत मारते थे, कहते आप आई जाए, आप इससे दूर लेके जाओ। और कितने साल इसका इलाज करवाया? 5 साल तक कराए, मतलब थक गए ना तो हम बहुत रोते थे, एकदम टूट गए थे कि हमारी बच्ची कभी चल नहीं सकती। फिर हमारे रिश्तेदार ने हमें बताया कि आप कामड़ा चर्च जाओ, वहाँ आपको ब्लेसिंग मिलेगी। जैसे पास्टर जी प्रभु के दास ने हमें प्रार्थना करे कि अपने बच्चों को ऊपर हाथ रखे, वैसे हमारे अंदर हीलिंग आई है एक पाएगी से अंदर से, जैसे आत्मा बोली कि अपने बेटे के ऊपर रखे हाथ कि आपकी बेटी ब्लेस हो जाएगी, चंगे हो जाएगी। धन्यवाद प्रभु। और उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मेरी बेटी मैंने देखा बहुत चलने लगी है मेरी बेटी। आप चलाएं अपनी बेटी को जरा, आगे होकर खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें। कलीसिया इस बड़ी गवाही के लिए आप उस बच्ची को, उस बेटी को चलता हुआ देख पा रहे हैं जो बाय बर्थ बचपन से जो कभी चली नहीं थी, 7 साल उम्र हो चुकी है और खड़ी तक नहीं ये बच्ची हो पाती थी, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और आज ये बच्ची चल। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन।
आप बताएं, जब आपकी बेटी ऐसी थी तो जब आप स्कूल में इसकी एडमिशन करवाने के लिए जाते थे, टीचर क्या बोलते थे? वहाँ पे कहते हैं आपकी लड़की अब आए जी, हम आपका एडमिशन नहीं ले सकते। हमने तो एकदम टूट गए थे, हमारी बच्ची पढ़ेगी नहीं लगता है, हम इससे अच्छा हमारी जिंदगी खराब है, हम मर ही जाते, अपने बच्ची को लेके आत्महत्या कर लेते। एकदम से टूट गए थे, रातों दिन घुटते थे हम। और जब पैसा नहीं होता था इलाज करवाने के लिए, कहाँ से अरेंज करते थे? इतने डॉक्टर चेंज किए आपने? ऐसे कर्जे ले लेके हमने मतलब स्टैंड करते थे कि जब वहाँ पे बताया कि 2-3 लाख रुपया लगेंगे, फिर हमने कहा हमसे नहीं होगा, हम ऊपर वाले को पर छोड़ देते, जो होगा देखा जाएगा। और आस पड़ोस वाले बोलते थे कि तुम्हारी बच्ची अपाहिज है। यस। अभी कितने समय से आपकी बेटी चल पा रही है, कितने टाइम से? ये 15 दिन हो गए। हमारी बेटी एकदम से ब्लड से चंगी है। बेटी हमारी खुद बोलती है कि हमारा हड्डी मजबूत हो गया है। हमारी बेटी बोल भी नहीं सकती तो उसका जुबान भी खुल गया है। इसका ऑपरेशन भी मुंह के कराया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब वो बोलती भी है, चलती भी है, ब्लेस हो गई है। तो परमेश्वर ने हीलिंग कर दिया है मेरी। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अमेजिंग टेस्टमनी है जो आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत काम किया इनकी बच्ची की जिंदगी में। और अभी आस पड़ोस वाले क्या बोलते हुए, लोग क्या बोलते देख के? आप बोलते हैं कि आप अब ऐसा क्या करे कि आपकी बच्ची चलने लगी है। हमने कहा हम तो प्रभु के घर गए तो वहाँ पे हमारी बेटी चलने लगी। हम तो शुभ समाचार चर्च गए। कहते आपने वहाँ जाके क्यों धर्म बदल लिया? हमने कहा धर्म नहीं बदला है, हमारे बेटे को जीवन मिला है। यहाँ पे आप भी आइए, आप पे ब्लेस हो जाओगे। हमारे प्रभु के घर में आओ, आनंद है, आनंद मिलता है पिता के घर में। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में, 7 बार ऊंची आवाज में हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के उस जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर के बड़े काम के लिए। ये आज जो लोग पहली बार देख रहे होंगे, ये अद्भुत काम जो परमेश्वर कर रहे हैं लोगों के जीवन में, ये गवाहियां आपके विश्वास को 7वें आसमान पे लेके जाती है कि कैसे परमेश्वर ने उस अपाहिज बच्ची को चंगा किया, जिसको स्कूल वालों ने नकार दिया, पड़ोसियों ने नकार दिया, अपाहिज बोल दिया, एडमिशन नहीं हो रही थी। लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, 7 साल में पहली बार इनकी बच्ची चली है। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कलीसिया। अपने हाथ को उठाएं, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते हुए। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। अभी बहुत टेस्टमनीज हैं, आप जानते हैं जब भी गवाहियां शुरू होती है तो ये लगातार चलती जाती हैं। बहन आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरबजीत कौर है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੇ ਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਆ CSC ਨੂਰ ਮਹਿਲ कॉन्ट्रैक्ट ਤੇ ਮੇਰੀ जॉब ਆ। और 5 महीने पहले जब जॉब से आप घर आए तो अचानक से आपके फेस की जो लेफ्ट साइड वो सुन्न होने लगी थी। हाँ जी। आप खुद स्टाफ नर्स हैं, आपको तो पता होगा क्या चीज़ है। आप खुल के बताएं क्या क्या हुआ था आपके साथ और क्या इफेक्ट इसका आपके शरीर पे पड़ा था। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਖ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਖਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੱਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਦੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ दूसरे दिन अरेंज नहीं होया साढ़े को पैसों का। मतलब फर्स्ट पहले जो हॉस्पिटल में लेकर गए थे उन्होंने जवाब दे दिया था?
हाँ जी जवाब देता जब दूसरे हॉस्पिटल लेके गए वहां पे डॉक्टर ने जब आपके दिमाग की MRI की स्कैनिंग हुई हाँ जी। तो क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा ब्रेन डिफ्यूजन हो गया ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਗਈਆਂ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਲੌਟ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਰੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਟੈਗੋਰ ਹਾਰਟ ਕੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਜਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਘੜੀਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ NHS हॉस्पिटल जलंधर ही गए। वहां पे चेक किया, डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन की जो नसें हैं वो श्रिंक हो चुकी हैं। हाँ जी। और आपके परिवार को ये बोल दिया था कि इन फ्यूचर इन्हें फिर से ये अटैक हो सकता है। हाँ जी, वो कहते कदे भी अटैक आ सकता, तुसी बी केयरफुली कि इन्हां दी केयर इन्नी करनी कि इन्हां नूं 1 मिनट भी इकल्ले नहीं छड्डना। आपकी जो मेमोरी थी वो भी लॉस हो चुकी थी? मेमोरी इन्नी लॉस हो गई सी ब्रदर जी कि मैं अपने हस्बैंड नाल मिसबिहेव कर लगी सी। जब आप हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर चेक कर रहे थे, उस समय आपके हस्बैंड आपके साथ में थे? हस्बैंड मेरे 24 आवर्स मेरे नाल ही रहा, 1 मिनट लिए मैंने इग्नोर नहीं किया इन्होंने। भाई आप बताएं, आपने अपनी वाइफ को उस कंडीशन में देखा है, डॉक्टर ने बोला कि इनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है और कोई किसी को पहचानते नहीं थे, पागलों के जैसा बिहेवियर हो चुका था, कैसी कंडीशन थी आपने तो देखा होगा अपनी आंखों से? हाँ जी मैं देखी सी। मैं ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 24 ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ 24 ਆਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। और जब पहले अटैक से ही अभी तक चंगे नहीं हुए थे और 28 अप्रैल 2023 को दोबारा ब्रेन अटैक हुआ इन्हें। यस। और उस समय इनकी आंखें उल्टी हो गई, मुंह टेढ़ा हो गया था। हाँ जी। क्या हुआ जब तीसरे हॉस्पिटल में वहां पे जलंधर के आप लेके गए इन्हें? तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਟੈਕ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ CMC ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ DMC ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਆਇਆ। 11 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ 18 मई ਨੂੰ CMC हॉस्पिटल एडमिट होगा जाके। इनको कितनी बार ये ब्रेन का अटैक हुआ था? 3 बार अटैक होया ब्रेन का ही। और इनकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर, आपको क्या लगता था ये मतलब इनके साथ क्या होगा, जैसे डॉक्टर बता रहे थे इनकी हालत के बारे में? ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਟਾਈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਲॉस ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। और जब इनको दोबारा से डॉक्टर ने इनके ब्रेन की EEG की थी तो जिसमें सिर पर जो वायर्स जो लगाते हैं, जो तारें लगाते हैं, उसका क्या बताया था कि क्या हुआ ब्रेन में? उन्होंने बोला कि उन्होंने 2 घंटे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾ ਕੇ ਸਲੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਸਲੀਪ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਦਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਜਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ A to Z ਹੈਡ ਟੂ ਫੀਟ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। मतलब 3 बार इन्हें ब्रेन अटैक आ चुका था? 3 बार अटैक आ चुका। और जब तीसरी बार आया था तो डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था कि ये रोग इन्हें लाइफ टाइम रहेगा। यस। कभी भी इनको ब्रेन अटैक फिर से हो सकता है इनकी डेथ भी हो जाए। हाँ जी। उस समय घर का माहौल कैसा था, क्या था? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। और उसके बाद ये पूरी तरह बेड पे चले गए? हाँ जी। टॉयलेट बाथरूम कैसे, कौन सा? टॉयलेट बाथ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
और आपको ये था भी कभी भी इनकी डेथ हो सकती है कि ऐसी हालत थी? हाँ जी, इतना ही सी। और फिर कैसे परमेश्वर ने चंगा किया? यहाँ का चर्च के बारे में, खामरा के बारे में कैसे पता चला आपको? ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਬਜੀਤ भी ठीक होगी। और जब इनको पहली बार चर्च में लेके आए तो कैसे लेके आए थे? मतलब व्हील चेयर पे थे या कैसे थे? ਅਸੀਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਅਰ ਲਿੰਬਸ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸੋਜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। और जब ये चर्च में आए तो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे। उस दिन जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन के अंदर दुष्ट आत्माएं व्हीलचेयर के रोगी को छोड़ के जा रही हैं, शिकंजों के रोगी को छोड़ के जा रही हैं, हील हो रही है राइट नाउ। वो टेबल तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। और जब प्रार्थना को रिसीव किया, बहन आप बताएं क्या हुआ आपकी बॉडी में उसके बाद? ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੂਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਠੰਡਕ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਜਾਣਾ। और अभी आपका जीवन कैसा है? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਬਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ। जैसे पागलपन होता है, पागलपन के जैसा। ਪਾਗਲਪਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਡਣ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਪਾੜ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। आप बताएं भाई, अभी कैसी कंडीशन है आपकी वाइफ की? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ CMC ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਬਿਲकुल ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਬਿਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਆ। चलें बहन, आप जरा चल के देखिए। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देते हुए। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए कलीसिया। बिगड़ा नसीब मेरा जाग पड़ा, बिगड़ा नसीब मेरा जाग पड़ा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। ओ बिगड़ा नसीब मेरा जाग पड़ा, बिगड़ा नसीब मेरा जाग पड़ा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में कलीसिया। तारीफ करें एक बार जोर से इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए, इस जीवित गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाएं एक बार कलीसिया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। दुख कट्टे जाते जाके हर बंदे दे। सिस्टर क्या नाम है आपका? परवीना, कहाँ से हैं आप? पंचकुला हरियाणा से। क्या गवाही आप खुद बताएं अपनी। मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक्स वगैरह होते 1.5 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा अटैक करती थी। क्या होता था जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, मेरे परिवार वालों के साथ मैं लड़ती थी, हाथ पैर मुड़ जाते थे मेरे, बहुत मुश्किल होता था मुझे। इस वजह से मेरी मेडिसिन चलना शुरू हो गया था और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया और क्या नाम है, मैं अपने आप को
अपना बाल को पकड़ के मैं ऐसा करती थी, पूरा मैं अपने सर को दीवार पे पटकती थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी इस चीज से। दबाव पड़ते थे, बॉडी को मूव नहीं कर पाते थे। कैसी कंडीशन रहती थी आपकी उस समय? मैं बहुत थकी थकी महसूस करती थी। दबाव पड़ना, डर लगना? बहुत ज्यादा डर लगता था। बाथरूम जाने के लिए भी मुझे डर लगता था। मुझे लगता था मेरे साथ में कोई चल रहा है। और आपको ऐसे लगता था कि जैसे दुष्ट आत्मा आपको मारने की कोशिश कर रही हैं? हाँ जी। अटैक बढ़ रहे थे? हाँ जी, मुझे खींच के ले जा रही थी कोई। आपको नजर आती थी दुष्ट आत्माएं? हाँ जी, उसका बैक साइड को नजर आया था मुझे जब मैं सो रही थी। और उस समय क्या क्या मन में आता था बहन आपके? फिर मुझे लगता था पता नहीं मैं जी भी पाऊंगी या नहीं जी पाऊंगी। बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी मैं। काला साया जैसे हमेशा आपके साथ रहता हो? हाँ जी। कोई डर लेडीज आपके साथ रहती हो? हाँ, लेडीज मुझे खींच के ले जा रही थी कहीं। डिप्रेशन में चले गए थे, फैमिली आपको क्या कहती थी? आपके परिवार वाले आपकी कंडीशन देखते थे? जैसे अभी पिछले साल मेरी मैरिज हो गई थी, तो मेरे घर वालों को यही डर लगा रहता था कल को कहीं ये प्रेग्नेंट ना हो जाए। अगर प्रेग्नेंट होगी तो ये इसके बच्चा भी मर जाएगा इसके साथ। इतने मेरे हालत खराब हो गए थे। मैं गिर पड़ जाती थी कहीं भी, हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे मेरे। बहन आपको नेगेटिव थॉट आते थे? बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं? नहीं, ये तो नहीं होता था, लेकिन ओवर थिंकिंग होता था बहुत जगह पे। तो मेडिसिन चली, ट्रीटमेंट चला, डॉक्टर क्या कहते थे आपको? डॉक्टर कहते थे दवाई खा लो, दवाई खा लो, लेकिन पता नहीं था कि दवाई कब तक चलेगी। दवाइयां खा रहे थे, कोई फर्क नहीं, कोई आराम नहीं था। तो चर्च के बारे में कैसे जाना आप? कैसे पता चला आपको खामरा चर्च के बारे में? सिस्टर्स के द्वारा पता लगा था। मेरी सिस्टर के फ्रेंड इधर पे वॉलंटियर है, उनके द्वारा मुझे पता लगा था। तो ऑनलाइन मैंने रिसीव किया। मीटिंग ऑनलाइन आप देखनी शुरू की, गवाहियां सुनी और आपका विश्वास बढ़ा। आपने देखा कि लोग हील हो रहे हैं। हाँ जी। तो आपने भी अपने लिए ले हैंड कार्ड, व्हाइट कार्ड रजिस्ट्रेशन किया। हाँ जी। 9 फरवरी 2023 को इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। जिसमें बसे बात और सच्चा तेरी तरह बनूंगा मैं मंदिर तेरा मेरे खुदा। सिस्टर, जैसे ही हमारे स्पिरिचुअल मदर ने हाथ रखा आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई, क्या हुआ उस समय? क्या महसूस किया आपने? मुझे पवित्र आत्मा ने टच किया। मुझे बहुत ज्यादा गर्माहट सी महसूस हुई। मैं गिर पड़ी, मैं रो रही थी। और उसके बाद क्या बदलाव आया फिर? मुझे उसके बाद मेडिसिन मेरा टोटली बंद हो गया और वो अटैक्स वगैरह सारे खत्म हो गए। अब मैं अच्छे से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर की महिमा करती हूँ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। जैसे ले हैंड प्रार्थना हुई, वो अटैक खत्म है, डिप्रेशन खत्म है, जो बुरे ख्याल आपके मन में चलते थे वो खत्म है। खत्म है, सारा एकदम से लाइफ बदल चुकी है। यस। कैसे रहते हैं अब आप अपने घर में? अब मैं फेथफुली रहती हूँ, परमेश्वर की महिमा करती हूँ, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाती हूँ लोगों को। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च, अपने हाथों को उठाते हुए इस गवाही के लिए, सीलिंग के लिए सब धन्यवाद देते हुए सब आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये छत्तीसगढ़ ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस ब्रदर का नाम राजकुमार मोंगरे है। इनकी गवाही है कि 25 साल पहले ये गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई शराब, गुटखे, सिगरेट का नशा करते थे। ये एक दिन में 1 बोतल शराब की, 3 से 4 पैकेट गुटखे के और आधा पैकेट ये बीड़ी का बंडल पीते थे और सिगरेट ये का नशा करते थे। ये जितना भी कमाते थे उसका आधा हिस्सा ये नशों में उड़ा देते थे, जिसकी वजह से इनकी फैमिली में हमेशा कलेश रहता था और ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और जब ये भाई शराब का ज़्यादा नशा कर लेते थे तो ये भाई बताते हैं कि ये सड़क की फुटपाथ पर गिरे होते थे और इनके दोस्त जो थे इन्हें घर छोड़ के जाते थे, जिसकी वजह से इनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। ये भाई इस नशे से बाहर तो आना चाहते थे पर बिल्कुल भी इस नशे को छोड़ नहीं पा रहे थे। इस नशे की तलब को ख़त्म नहीं हो पा रही थी इनकी लाइफ से। फिर इनकी फैमिली बहुत सारी अन्य जगहों पर इनको लेके गए, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इनकी बेटी को YouTube के माध्यम से अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में, जीवित चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने खामरा चर्च के साथ ये जुड़े रहे। लगातार ये चर्च आते रहे, गवाहियों को सुनते थे और फिर 11 जून 2023 को बिगेस्ट डिलीवरेंस मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया,
गंदी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, जादू टोने की आत्माएं बाहर आई यीशु के नाम में। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये भाई बताते कि इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव करने के बाद जब इन्होंने नशा करने की कोशिश की, इनका नशा करने को बिल्कुल भी मन नहीं किया। ये आज पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे इस छुटकारे के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। इस भाई का नाम अजय कुमार है और ये कर्नाटका ब्रांच की गवाही है। इस भाई की गवाही है कि 13 साल पहले इस भाई पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए और इन्हें इस भाई को सपनों में मुर्दा लोग दिखाई देते थे और दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था। ये भाई लेबर का काम करते हैं और ये भाई इस अटैक के कारण ये भाई जिधर भी काम पर जाते थे वहीं पर गलत संगति में पड़ने के कारण ये भाई नशा करना शुरू कर देते थे और ये भाई ड्रिंक का, बीड़ी का, अफीम का नशा करते थे और एक दिन में आधी बोतल शराब, एक बंडल बीड़ी का और एक गोली अफीम की लेते थे और ये भाई अपनी आधी से ज़्यादा कमाई नशे में उड़ा देते, जिस कारण इनकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी और ये भाई अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। इनकी फैमिली इस नशे के कारण इनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और इस अटैक के कारण ये भाई व्यभिचार में भी पड़ गए और ये भाई बताते कि पूरी रात ये फ़ोन पर बातें करते थे, सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते थे और इस अटैक के कारण, इस नशों के कारण इस तरीके ये भाई पूरी रात सो भी नहीं पाते थे। इनकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और इसके कारण इनके मन में सुसाइडल अटैक होते। ये भाई बताते कि इन्होंने 2 बार इस भाई ने मरने की भी कोशिश की। एक बार मेडिसिन की ओवरडोज लेकर, एक बार इन्होंने ब्लेड से अपने हाथ की कलाई की नस काट कर मरने की कोशिश की। ये अपने ऐसी लाइफ से बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे। इनकी टोटली लाइफ, मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर इनके मदर इन लॉ के द्वारा इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला। ये भाई बताते कि जब ये पहली बार चर्च में आए इनका विश्वास बढ़ा। जब इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, इनका विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर नशे की दुष्ट आत्मा से, इन अटैक से मुझे आजाद करेंगे। फिर 8 अगस्त 9 अक्टूबर को जब 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था और जैसे इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, परमेश्वर के सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और उस दिन के बाद इनके ऊपर कोई भी दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं हुए। अब ये भाई पूरी तरह से नशे की दुष्ट आत्मा से, इस दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। इस बहन का नाम रंजीत कौर है, लुधियाना के ये रहने वाले हैं। 1 साल पहले इनके फादर को सपना आया कि एक सांप ने इनके फादर के दोनों टांगों पर काट लिया है। ऐसा ही हुआ था उनको? ऐसे ही हुआ। और जब सपना आया तो उसके बाद क्या हुआ फिर उनके बॉडी में? जैसे सपना आया तो ऐसे मेरे फादर को सांप ने कटिया होया सीगा ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਨਾਡੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ सपना आया कि मैंने सांप ने कटिया हुआ। और जब आपके फादर को ये सपना आया था सांप ने काट लिया दोनों टांगों के ऊपर, उसका असर क्या हुआ उनकी टांगों पे? उसका असर ये हो गया कि उनका पूरा छाले हो गए, जैसे पास वगदी सीगी, पूरा पानी निकलता था तो वेख्या नहीं जाता, बहुत टू मच स्मेल आउंदी सी उन्हां दे पैर दे लत्तां दोनों विचों। उनकी जो दोनों टांगे थी वो गलनी शुरू हो चुकी थी जी, ऐसा उन्होंने गलनियां शुरू हो गया सी। और उनके जख्मों में से वो गंदगी जो थी वो बाहर निकलती रहती थी, गंदी स्मेल भी आती थी। ये बहुत गंदी स्मेल आंदी, इतनी गंदी स्मेल आंदी कि उन्होंने लगा खड़िया नहीं होया जाता, इतनी टू मच ला कहने को दिल नहीं कर रहा। और उनकी जो चमड़ी थी, वो स्किन जो वहां पे थी वो काली पड़नी शुरू हो चुकी थी। यस। जब आपके फादर के ऊपर ये सपने के द्वारा अटैक हुआ, 2 हफ्ते के बाद आपको सेम सपना आया? फिर सेम सपना आया ऐसे मुझे। और आपके भी टांग के ऊपर सांप ने काट लिया? यस। मैं जैसे मैंने हल्का जिहा बुखार होया तो मैंने एक डोलो लेके पै गई ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ। 3 ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਤ ਤੇ छाले हो गए, उस तुरंत छाले हो गए मेरे लात। आपकी राइट टांग के ऊपर 3 जगह उस सपने में उस सांप ने काटा? हाँ, 3 जगह। और अगले ही दिन आपकी राइट टांग के ऊपर जख्म बनने शुरू हो चुके थे? बनने शुरू हो गए। पास निकल, जैसे मेरे फादर की पास निकलती, सेम टू सेम ऐसे मेरे पास निकलती सी। और आप और आपके फादर दोनों ही बेड पे चले गए थे? यस। मेरे फादर रहते जब वॉशरूम में सारा कुछ बैठते सी। इस तरह हौली हौली मेरा भी सेम ऐसे मेरे फादर जैसा ही हो गया। और आप पूरी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो चुके थे पूरी तरह से? यस। डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो डॉक्टर ने क्या बताया था? डॉक्टर ने तो बोले थे कि टांगे काट दी जाएगी। आपके फादर की दोनों टांगे? हाँ जी, दोनों। और आपकी राइट टांग? यस। दोनों की टांगे जो है उन्होंने बोला काटनी पड़ेगी। यस।
और जब ऐसा बोला तो उस समय क्या दिमाग में चल रहा था, क्या मन में आ रहा बहुत था? बुरा लग रहा था कि जैसे क्यों ऐसे हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ कि जैसे मेरे फादर को भी डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि दोनों टांग कटनी पड़ेगा, मुझे भी वो ऐसे डॉक्टर ने बोला कि आपकी टांग कटने पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। और आपके जीवन में फिर आजादी कैसे आई, कैसे परमेश्वर ने काम किया आपके जीवन जैसे में? मैं हम लोग तो जैसे मैं चर्च आंदे ऐसी कभी मिस नहीं किया, संडे तक कभी करया ही नहीं है ना, वीरवार समटाइम हो जाता पर संडे ने ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ जैसे अपोस्टल जी ने बोलिया कि स्किन के रोग हील होने जा रहे हैं, मैंने अपने लिए मैं अपने फादर लिए सुनिया, मैंने हालेलुया हालेलुया कह के मैंने रिसीव करा। मैं तो मैनू तो जैसे घर गई तो मैं तो ठीक होने शुरू के मैं अपने फादर ਨੂੰ फोन करा तो मेरी मदर कहती आ तेरे प्यो भी तेरा ठीक होने लग गया, इन्हें पता नहीं की होया। तो फिर मैं तारीफ करें जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। जब 8 जनवरी 2023 को संडे मीटिंग, मॉर्निंग मीटिंग इन्होंने यहाँ पे अटेंड करी, जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, रिसीव किया, उसके बाद जो इवनिंग मीटिंग होती है, आप जानते हैं जो ऑनलाइन मीटिंग होती है, उस मीटिंग को भी इन्होंने अटेंड यहीं पे रह के किया। और उस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की थी, खास प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं यीशु मसीह के नाम में स्किन की हीलिंग को देख रहा हूं आपकी बॉडी के ऊपर आते हुए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में कमांड करता हूं हीलिंग को आपकी बॉडी के ऊपर, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। कमांड करता हूं डिलीवरेंस को आपके शरीर के ऊपर। और इस प्रेयर को जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वो दुष्ट आत्मा जो सपने में अटैक करता था वो इनको, इनके फादर को छोड़ के गया। ये बहन यहाँ पे मौजूद थे और इनके फादर जो घर पे थे वहीं पे परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। और अभी बताएं दोनों की हालत कैसी है, टांगे दोनों की कैसे है? हम दोनों अच्छे हो गए, मैं तो बिल्कुल हील, मेरे फादर में तो ज्यादा हील हो गया, और सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डॉक्टर बोलते थे टांगे काटनी पड़ेगी, अभी क्या बोला फिर उसके बाद? डॉक्टर तो पहले तो बोलते थे टांगे काटने में बहुत डर लग रहा थी, तो हूँ तो बहुत आनंदी कहने आनंदी कह के पूछो ही कुछ ना, आनंदी कहता तो कोई टिकाना ही नहीं हैगा, इन्ने खुश है। चल के देखिए आप, चलिए जरा तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। खड़े होके अपने स्थान पे परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों के लिए, चर्च कामों के लिए जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं कलीसिया। पूरी ताकत के साथ, पूरे आनंद के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए। आप जानते हैं जो संडे इवनिंग ऑनलाइन मीटिंग होती है उसमें से इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां हम रिसीव करते हैं कि जब लोग अपने घरों से उस प्रेयर को अटेंड करते हैं, फॉरेन ब्रांचेस में अटेंड करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से लोगों के जीवन में काम करता है। प्रोफेटिक हीलिंग को, प्रोफेटिक डिलीवरेंस को लोगों के जीवन में परमेश्वर के द्वारा बड़े और अद्भुत कामों को होते हुए देखा है। इस जीवित गवाही के लिए एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हुए, ऊंची ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी ही सदा के लिए। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी ही सना के लिए। तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी ही सना के लिए। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी ही सना के लिए। तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरा तख्त लगे, रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे।
सब होठ हुए तेरी ही सना के, सब हाथ उठे सब होठ खुले तेरी ही सना के। अपनी सोचों फिकर रखे हम एक तरफ, उसकी गुर्बत में कुछ पल गुजार ले। अपनी सोचें फिकर रखे हम एक तरफ, उसकी गुर्बत में कुछ पल गुजार ले। गर हो कामिल ईमान कुछ नामुमकिन